Good morning. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, dear students, today we have a webinar on data science and AI, a practical approach. This webinar is presented by Mr. Kushal Sharma sir, who is Director of Prushal Technology Private Limited, Pune. Now, students, I am giving you a small introduction on Kushal Sharma sir. So he is a thought leader, innovator, entrepreneur, company founder, professional speaker, and digital startup mentor. He is a data science practitioner having expertise in R and Python and also expertise in Hadoop systems. And he has also expertise on working of cloud computing technologies like Amazon Web Services and many more. So I welcome him on behalf of computer department. Welcome you, sir. Thank you very much, ma'am. Okay, good morning, sir. Good morning. Good morning. So, shall we start now? Yes, sir. Okay. Okay. Yes. Good morning, everyone. So, I believe Madam has given a very big introduction of mine. So, you can just, understand I'm Kushal, and I'll be helping you out with some of the concepts of what we have planned today. Okay, so we'll be discussing those things. And wherever you feel that you have queries or you are not able to understand, you can always let me know. Okay, you can interrupt, you can let me know, and we can discuss. Yeah, so I believe everyone is, yes, everyone is having this. Yeah, just a second. So I think. Second, okay. All right, yeah, so we can begin now, we can start now. So the topic, let me share my screen and you can see that we are about to discuss data science and artificial intelligence. And we will be having three main agendas today. And the three main agendas would be, we'll be discussing about data science, then we'll be going further and we will be talking about applied artificial intelligence, and then we will have a demo on smart bots. So I would request everyone, if you are comfortable with English, I'll talk in English. If you want, I can talk in English and Hindi mix. Okay, so what is your preference? You can just let me know. Accordingly, I will discuss with you. Yeah, everyone, what do you feel? Okay, mix. Okay, Tushar says mix. Fine. So चलो, we will discuss in a mixed way. Okay, वैसा ही आपकी मर्जी. Okay, तो आपने हिंदी में बोला, इसका मतलब आप हिंदी भी चाहते हैं. Correct? Okay, thank you very much. चलिए हम basic से शुरू करते हैं, from very basics, from very beginning.
जहाँ से आपने कुछ पहले से पढ़ा भी होगा वहां से शुरुआत करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे उसकी डेप्थ में जाएंगे और हम चैट बॉट्स बनाने की जो है बहुत ही स्क्रैच से वी विल ट्राई टू क्रिएट अ चैट बॉट। आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग की है तो आप पाइथन भी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे वी विल सी कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं पाइथन में बहुत ही बेसिक तरीके से चैट बॉट्स बनाना। और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम चैट बॉट्स बनाएंगे फिर मैं कुछ लाइब्रेरीज भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि कौन सी लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं चैटबॉट्स बनाने के लिए। तो पहले हम ऐसे ही बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग से कुछ शुरुआत करेंगे इफ एल्स के साथ में, फिर हम कुछ लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू भी ट्राई करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं डेटा साइंस के साथ में। And let me now switch on to the first one, data science in practice. So data science शुरू करने के लिए I'm taking you through this particular presentation, और यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें जो है कनेक्टेड हैं। अभी you must have heard about data, और हर जगह आप डेटा को एक्सपीरियंस भी करते होंगे और डेटा के बारे में सुनते भी होंगे। ओके, बिकॉज पिछले आई थिंक 10 सालों से इंडस्ट्री में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में it has been a very big thing, बहुत बहुत बड़ी चीज है डेटा। आप अपने पेरेंट्स से घर में जाके पूछ सकते हैं कि जब पहली बार उन्होंने एक लैपटॉप या कंप्यूटर लिया था, आई बिलीव उन्होंने कंप्यूटर ही लिया होगा। ओके, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कंप्यूटर लिया था उस टाइम पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, और मे बी आपको पता चलेगा कि उस कंप्यूटर में 20 GB हार्ड डिस्क हुआ करती थी या 40 GB हार्ड डिस्क हुआ करती थी। एंड इफ समबडी विल ब्रिंग दैट सीपीयू टुडे, आपके पास कोई 20 GB का या 40 GB का एक सीपीयू लेके आएगा, यू विल लाफ एट दैट पर्सन कि ये कोई सीपीयू है, राइट? बट इफ यू जस्ट गो बैक 15 to 20 years back, तो उस टाइम पर भी आप देखेंगे अराउंड 40 to 80 GB के सीपीयूज पर्सनल यूज के लिए चलते थे। उसमें भी जो बच्चे थे वो कॉन्ट्रा और बाकी बाकी गेम्स खेलते थे। ओके, तो इस ड्यूरेशन से आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनल, कि पर्सनली किस तरीके से ये पूरा ट्रांजिशन हुआ। तो आप देखेंगे कि ऐसे स्मॉल साइज्ड हार्ड डिस्क के साथ में जो है हमने शुरू किया, और रैम भी जो है एमबीज में हुआ करती थी, एमबीज में। फिर धीरे धीरे 1 GB आई, 2 GB, 1 GB रैम होना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर अब जाके अगर मुझे एक लैपटॉप अभी लेना है तो मैं कम से कम 8 GB से नीचे मैं सोचूंगा भी नहीं, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं मेरे को 12 GB चाहिए या 16 GB चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। ओके, 1 TB के नीचे हार्ड डिस्क तो मैं सोचूंगा ही नहीं। तो अगर हम पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट करें तो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, क्या इवॉल्व हुआ? स्टोरेज सिस्टम इवॉल्व हुआ, या फिर रैम प्रोसेसिंग सिस्टम भी इवॉल्व हुआ। ओके, हम देखते हैं पेंटियम से कोर टू डुओ डुअल कोर से फिर हम कहाँ पे फिर i3 4 5 6 7 जनरेशन तक आए, राइट? तो ये सारे के सारा जो कंप्यूटर फिर एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एवर इवॉल्विंग है। और ये इवॉल्विंग क्यों है? क्योंकि देयर इज अ डिमांड। जब तक कोई डिमांड नहीं होती तब तक इवॉल्व नहीं होती कोई चीज, राइट? तो डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि डेटा इतना ज्यादा ग्रो हो रहा था कि हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो गई थी। ओके, चलो अब इसको हम कंपनीज के थ्रू डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊंगा। अभी कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज के टर्म्स में कैसा था कि कंपनीज वर अर्लियर नॉट सो डिजिटल, इतने डिजिटल नहीं थे। अब पार्ले जी कंपनी है, उसको बिस्किट बनाना है, उसको क्या करना है? वेबसाइट से लोग खरीद रहे हैं, राइट? अभी तो हम सोचते नहीं, अभी तो वेबसाइट चाहिए। अभी जिस एज में आप लोग हैं या जिस जनरेशन में आप लोगों का जन्म हुआ है, that thinks digitally only. But if you talk about me, okay, so even I have seen कि डिजिटल इतना कोई नहीं था। हमने किराने की शॉप में गए, हमने सब खरीद लिया। कपड़े हमेशा हम शोरूम से या एक दुकान से ही खरीदेंगे, विल नॉट बुक ऑनलाइन। ओके, ये ऑनलाइन का ट्रेंड आप देखेंगे पिछले 10 सालों में से इवॉल्व हुआ। ओके, तो ये सब कुछ इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। उस टाइम पे किसी को कंप्लेन करनी है तो क्या करते थे? तो उसको चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे। ओके, और कंप्लेन तो नॉर्मल कस्टमर करता ही नहीं था, वो दुकान वाले के पास जाकर के ही झगड़ा करेगा, कंपनी को कंप्लेन नहीं करेगा। बट आज आप देखो, इफ यू आर फेसिंग एनीथिंग ऑन डेयरी मिल्क, कुछ इशू आ गए, व्हाट यू विल डू, यू विल क्विकली राइट एन ईमेल या फिर क्यूआर कोड स्कैन किया, देयर विल बी सम फॉर्म ओपनड अप और वहां पे चैट कर लिया आपने। कितना फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है कि क्विक कम्युनिकेशन हो गया, डायरेक्टली कंपनी से, कंपनी के कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, करेक्ट? तो ये पहले नहीं था, दिस वाज नॉट अर्लियर। तो जब डिजिटलाइजेशन बढ़ा, कंपनी की डिजिटल प्रेजेंस केवल वेबसाइट या वेब पेज तक ही सीमित नहीं थी। व्हाट हैपेंड, वो वेबसाइट या वेब पेज से ज्यादा हो गई। मतलब कि कहाँ कहाँ पे चले गई? सोशल मीडिया में चले गए, ईमेल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गए,
फिर चैट्स हो गए, फीडबैक फॉर्म्स आ गए, गूगल ने इतने सारे प्लेटफॉर्म ओपन कर दिए, गूगल मैप्स में बिजनेस को रजिस्टर कर दिया, गूगल माई बिजनेस में पूरे बिजनेस का कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट एस्टेब्लिश कर दिया। ओके, मेरा भी यहाँ पे कंपनी है, मेरा इंस्टीट्यूट भी है, तो मेरे पास भी गूगल का पूरा पोर्टल है, मैं वहां से कस्टमर से इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ, बातें भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे नए नए इवेंट्स भी ऐड कर देता हूँ। लिंक्डइन आ गया, लिंक्डइन में अपने बिजनेस को, कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। फेसबुक में एज ए कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे, जैसा बिजनेस, जैसा काम, जैसा ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से सो मेनी डिजिटल स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स दे इवॉल्व। इतने सारे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब ये सब स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म की वजह से आई थिंक somebody is unmuted, please mute yourself, आप म्यूट कर लीजिए, है ना? हाँ, जब जब हम डिस्कस करेंगे तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, yes, Sahid, I think you are unmuted, you can mute yourself. Okay, yes, Sahid, I request you can mute yourself. तो हुआ क्या, इससे इतना सारा जो डेटा जनरेट हुआ, बहुत सारा डेटा जनरेट होने लगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ गया, उससे फायदा भी हुआ, कस्टमर को बेनिफिट भी मिला। क्यों बेनिफिट? पहले जो है आप छोटे छोटे, अभी मैं आई जस्ट शेयर वन एग्जांपल। आई वेंट टू जनरल स्टोर और वहां पे जाके मैंने फेविक्विक मांगा। ओके, वो बंदे ने फेविक्विक निकाल के दे दिया, मैंने खोला और उसके सामने मैंने पैकेट फाड़ा, और वो फेविक्विक आपको पता है 5 रुपए का छोटा सा आता है, वो पूरा सूखा हुआ था, नथिंग वाज देयर। ओके, तो उसने क्या किया, उसने मेरे से लिया, वो मुझे दूसरा दिया, और उसने उसको चिपका के स्टेपल मार के फिर से रख दिया। मतलब कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो उसको वही दे देगा, ठीक है? तो आई वाज अवेयर, तो मैंने वहां खोल लिया था। मैंने दूसरा भी ओपन किया, वो भी वैसे ही था। देन ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी कि तुम ऐसे करेंगे क्या सर, इस तरह से करेंगे? सो आई थॉट व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो अर्लियर मैं उससे ज्यादा बात करता, अगर डिजिटल इतना कनेक्शन डायरेक्ट कंपनी के साथ ना होता, तो आई जस्ट टुक द इमेज ऑफ दैट एंड आई जस्ट पोस्टेड इट टू द कंपनी। सो आई हैव अ रीच डायरेक्टली टू द कंपनी टुडे। फेविक्विक कंपनी के पास डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उनका कस्टमर केयर नंबर भी है, उनका वेबसाइट भी है, और उनका ईमेल भी दिया हुआ है। वेबसाइट में जाएंगे तो चैटबॉट भी है। तो आई वॉज डायरेक्टली एबल टू कनेक्ट विद देम। सिमिलरली दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ एक बार हुआ। आई वॉज विजिटिंग अ कंपनी, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग था, तो यहाँ बानेर में कंपनी में आई वॉज ट्रैवलिंग विद अ कैब। ओके, वो कैब वाले ने क्या किया, ओके अब देखिए, not name the companies, you know, only 2 big companies are there. Okay, तो वो कैब वाले ने, गलती से उससे हुआ होगा, उसने, मैंने शेयरिंग में कैब बुक किया था, अच्छा टाइम था, 2 घंटे का टाइम था। ओके, तो उस बंदे ने मेरा जो ट्रिप था बीच में ही रोक दिया। ओके, एंड आई वाज अवेयर कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐप कुछ गलती कर दे। अगर ऐप भी कुछ गलती कर रहा है, देन ऑल्सो आई हैव पेड टू दैट पॉइंट कि मुझे जहां जाना है, तो मुझे उससे 4-5 किलोमीटर पहले बोला कि सर ये एप्लीकेशन का मिस्टेक है, ऐसा होता है, और इस तरीके से अभी आगे तो नहीं जा सकते, पर आपको जाना है तो मेरे को 100 रुपया, 500 रुपया, मतलब जितना भी था इतना दे दो और मैं आपको छोड़ दूंगा। आई सेड नो, देखो दिस इज योर एप्स मिस्टेक, यू आर फ्रॉम दिस कंपनी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे को आप वहां तक छोड़ दीजिए। ओके, अदरवाइज आई विल बुक अनदर। ओके, तो अभी मुझे जल्दी थी, तो मैंने एक और कैब बुक किया और तुरंत दूसरी कैब आ गई उसी कंपनी का, एंड आई वेंट टू माई लोकेशन। बट उसको मैंने क्या किया, आई गेव अ फीडबैक इन द चैट कि इस तरीके से जो है हुआ। एंड मैंने वो दूसरे कैब वाले से पूछा भी कि ऐसा होता है क्या? ही सेड ऐसा नहीं होता है, जब तक कि आप या फिर ड्राइवर खुद आपकी कैब, आपकी राइड को एंड नहीं करता कि भाई ये बंदा पहुंच गया है या फिर ये बंदा अभी उतर गया है, तब तक ऐप कभी भी ऐसा नहीं करता। तो आई गॉट टू नो कि वो बंदे को 150 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए थे, इस वजह से उसने ऐसा किया। एंड आई हैड रिटन एवरीथिंग इन द चैट। ओके, एंड विद इन 3 to 5 days उनका रिस्पॉन्स भी आया, और उसके बाद में दे रिफंडेड द होल अमाउंट टू मी। नाउ अंडरस्टैंड, डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटलाइजेशन की वजह से डेटा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज ट्रू, बट इसके बेनिफिट भी हैं। ओके, बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझ में आना चाहिए कि हम अगर इस तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा भी रहे हैं, तो क्या इसका कोई बेनिफिट है? तो आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल्स ऑफ माय लाइफ। ओके, व्हाट इज रिलेटेड टू माय लाइफ। ओके, बिकॉज दैट इज समथिंग विल हिट योर माइंड, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इसी चीज को मैं एक और एक्सपीरियंस और एग्जांपल से मैं आगे बताता हूँ। ओके, बिकॉज ज्यादा टेक्निकल में एकदम से जाएंगे तो शायद आपको लगेगा अरे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये सारी चीजें एज ए एंड कंज्यूमर मुझे भी इफेक्ट करती हैं, आपको भी अफेक्ट करती हैं, और एज ए बिग ऑर्गेनाइजेशंस उनको भी अफेक्ट करती हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब जब से लॉकडाउन पड़ा उसके थोड़े दिन पहले, आई हैड अ विजिट टू वन गवर्नमेंट कंपनी विच इज इन असम। वहाँ पे एक NRL, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है,
आई विजिटेड देयर, और वहाँ पे 5 days का मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एंड आई सॉ देयर वहाँ पे बहुत ऐसे मेटालिक प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और उसमें से वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। एंड उसमें आप देखेंगे तो अगर उनके प्लांट में कुछ भी इश्यूज आए, इफ द प्लांट इज शट डाउन फॉर 3 to 4 hours ऑल्सो, तो करोड़ का नुकसान होता है गवर्नमेंट को। ओके, तो यानी कि वो प्लांट्स को हमेशा चलते रहना चाहिए, मेंटेनेंस कम से कम टाइम लगना चाहिए, ये उनका हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है। पर उसमें प्रॉब्लम कभी कभी because of some reason, I think I'm unmuted again. Athar, can you please mute yourself? So yeah, thank you. So when I basically was discussing with them again for analytics और machine learning इसी बारे में और data related training था, तो जब उनसे डिस्कशन हो रहा था at that time I got to know कि there is a big challenge, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी issues आए प्लांट में, तो उस प्लांट को कम से कम 3-4-5 घंटे तक उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता, बिकॉज वो इतना टेम्परेचर हाई होता है that nobody physically go there. So it was a big challenge. Okay, बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब कुछ issues आए, after that the plant needs to be shut down for 4 to 5 hours to cool it, and then only somebody can visit. Okay, और visit करना भी risky है, because it's all, you know, machinery and anything can happen inside it. So it was a big challenge. So what solution was made? Solution ये बनाया गया कि already वो solution शुरू हो चुका था कि वहां पर sensors बिठाने शुरू कर दिए थे। Already उन्होंने 25 to 30 places में sensors बिठा दिए थे, और वो sensors क्या नोट करते थे? वो plant का vibration, plant का temperature, the kind of sound and noises which is getting produced. तो ये सारी चीजें जो है वो sensors जो है कैप्चर करते थे। अब नाउ इट वाज एट द स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कि जब प्लांट नॉर्मल चल रहा है उस टाइम पर किस तरीके का टेम्परेचर है, वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, और किस तरीके के गैसेस कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो एवरीथिंग वाज गेटिंग कैप्चर्ड, ये सब कुछ नोट डाउन हो रहा था। ओके, अगेन यू कैन सी दैट डिजिटलाइजेशन हुआ, और इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे इस एक्सपेरिमेंट को कुछ समय तक करते रहेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि without human being always entering into the plant and keeping the plant shut down for 4-5 hours, and then troubleshooting and then basically resolving, तो इतना सारा जो टाइम है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का भी और जो टाइम कंजम्पशन भी है, ये बच जाएगा, राइट? सो कैसे हुआ ये हुआ टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये हुआ सेंसर्स के थ्रू, कैसे डेटा कैप्चर करके हुआ। बट इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट हुआ टाइम बचा हमारा, और टाइम के साथ साथ में ह्यूमन लाइफ्स जो है, वेरी प्रेशियस लाइफ्स, वो बेसिकली वहां जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ डेंजर, तो वो भी हमारा सेव हो गया। सो नाउ आई बिलीव यू मस्ट बी कन्विंस्ड, आप कन्विंस हो गए होंगे कि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है। और क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि इस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, इस डेटा को हम वी वॉच दिस डेटा, वी ऑब्जर्व दिस डेटा, और इसके ऑब्जर्वेशन से वी रियली गेट बेनिफिटेड। ओके, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो कंपनी हो, ओके, एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस डेटा। सो नाउ लेट्स वॉक थ्रू द प्रेजेंटेशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो डेटा है, आपने मे बी स्कूलिंग में जब आप छोटे होंगे तब आपने पहली बार जो है इसको पढ़ना शुरू किया होगा, और यही शायद एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम डेटा बोलते हैं, और जब इसको प्रोसेस करते हैं तो दिस डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। ओके, जब आप इसे प्रोसेस कर रहे होते हैं तो यही डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। फिर आगे चल के अभी जो हमने डिस्कस किया, बहुत सारे फॉर्मेट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वीडियो फॉर्मेट्स हो सकता है, कुछ ऑडियो फॉर्मेट्स हो सकते हैं, टेक्सचुअल डेटा हो सकता है। फिर डेटा इंडस्ट्री में अभी मैंने सेंसर्स की बात की, स्मार्ट सिटीज की बात कर लें, या फिर जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ हर जगह आप देखेंगे वी हैव सेंसर्स एंड लॉट ऑफ डिवाइसेस व्हिच कीप ऑन जनरेटिंग डेटा। ओके, तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो डेटा जनरेट करती हैं, एंड देयरफॉर दिस डेटा डिड नॉट रिमेन जस्ट डेटा, इट बिकेम बिग डेटा। ये बिग डेटा बन गया। क्यों बन गया ये भी मैं फास्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट डेटा साइंस है, तो डेटा साइंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बिग डेटा क्यों बन गया? ये इसलिए बन गया क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत हाई था, वैरायटी थी, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट में था, वेलोसिटी, स्पीड, बहुत स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, वेरासिटी भी है, वैल्यू भी है, वेरिएबिलिटी भी है। इनको मैं आराम से समझा देता हूँ आपको क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ लिसन, अब देखिए वॉल्यूम बहुत सिंपल है समझने के लिए। अब अगर मान लेते हैं ये जो जूम की मीटिंग चल रही है, इसकी भी एक कैपेसिटी है, 100 की होती है, 200 की होती है, 300 की होती है, 1000 की होती है, वेबिनार्स करेंगे तो 10,000 की होती है, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। तो इफ यू सी दैट कि अगर हमारे पास में 200 का लिमिट है, सो कैन वी हैव मोर देन 200? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। 200 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। यानी कि जूम में अब हम बिग क्राउड फेस कर रहे हैं,
करेक्ट, वी आर फेसिंग अ बिग क्राउड। उसी तरीके से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो वॉल्यूम क्या होता है कि मेरे पास में एक 32 GB का पेन ड्राइव है, पर मेरे पास डेटा कितना है, मेरे पास 1 TB का डेटा है। विल I be able to store that data into 32 GB का पेन ड्राइव? No, it is not possible. I cannot do that. मैं वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे मल्टीपल 32 + 32 + 32 + 32 ऐसे मल्टीपल पेन ड्राइव लाने पड़ेंगे, या फिर मैं एक कोई हार्ड डिस्क ले आऊं 2 TB का 4 TB का, ऐसा मैं हार्ड डिस्क ले आऊं। करेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक ऑप्शन ऐसा है कि आप एक बड़ा सा हार्ड डिस्क ले आओ, तो हार्ड डिस्क बड़ा सा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले आओ। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, 7-8 हजार या 10,000 तक का आएगा, जैसा कंपनी उसके हिसाब से आएगा। पर अगर आप वहां पर पेन ड्राइव लेके आते हो तो पेन ड्राइव आपको सस्ते पड़ेंगे। ओके, पर दोनों में चैलेंज है। पेन ड्राइव में आपको डेटा को चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा इधर डालो, थोड़ा दूसरे में, थोड़ा तीसरे में, थोड़ा चौथे में। ओके, पर हमारे पास में इंडस्ट्री में भी दोनों तरह के सॉल्यूशंस हैं। ओके, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव हैं, बिग कंपनीज अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो कैसे हैं, वो एक हार्ड डिस्क जैसे है कि एक पूरा सिस्टम हटाओ, एक बड़ा सा सिस्टम लेके आ जाओ। ओके, वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि कोई बात नहीं, हम नॉर्मल पेन ड्राइव लेते हैं और जितना जरूरत है उतने पेन ड्राइव हम ले लेते हैं। दिस इज अनदर सॉल्यूशन। ओके, तो एक सॉल्यूशन कैसा हो गया कि जिसमें छोटे 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 सॉल्यूशन से आपका पूरा सॉल्यूशन बन रहा है, और एक सॉल्यूशन ये हो गया कि एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ जाओ। ओके, तो दोनों तरह के अप्रोचेस इंडस्ट्री में पाए जाते हैं फॉर सॉल्विंग द वॉल्यूम का प्रॉब्लम। वैरायटी क्या होता है, वैरायटी से चैलेंज क्या आता है कि आप अगर देखोगे, आपने एसक्यूएल पढ़ा है, हैव यू स्टडीड एसक्यूएल, देखा है एसक्यूएल आपने? यस, हैव यू स्टडीड एसक्यूएल, पढ़ा है आपने? No, sir. No, sir. No, sir. किस साल में आप, विच ईयर यू आर इन? First year. First year. ओके, 12th किया आपने, 10th किया होगा ना? हाँ, 10th किया होगा, ठीक The है। database wala SQL. यस यस, डेटाबेस वाला एसक्यूएल, करेक्ट। Yes, I have learned a bit of it in my 10th. ओके ओके फाइन, ठीक है। हाँ, तो डेटाबेस वाले एसक्यूएल की बात करें, अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी आएगा। ओके, तो देखो क्या होता है, जो डेटाबेस वाला एसक्यूएल होता है, आप चलो एसक्यूएल को बाजू में रखते हैं। एक्सेल देखा होगा आपने, एक्सेल देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, हाँ। तो Yes, एक्सेल sir. में कैसा डेटा होता है, ऐसा रोज रहते हैं, है ना, और Rows, कॉलम्स के columns. नाम लिख दो। हाँ, जैसे सीरियल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, देन मोबाइल नंबर लिख दिया, फिर नीचे के रोज आप फिल करते रहो। तो कैसा डेटा हो गया, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, मतलब बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा है हमारे पास में। बट अब हम बात कर रहे हैं, अब इसी को आप रिकॉर्ड कर लो और इसको सुनो, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि यस यस, तो ये जो डेटा है ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। इफ यू रिकॉर्ड एंड यू लिसन टू दिस कन्वर्सेशन, ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, वो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। अगर आप ये इमेजेस देख रहे हैं कुछ, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो ये सारे के सारे जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब रोज एंड कॉलम्स, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, और जो डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में नहीं है वो क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ओके, अब उसके बीच में एक आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड कैसे होता है, आपने कभी तो HTML देखा होगा या XML देखा होगा। आई एम लिसनिंग टू योर सॉन्ग, somebody is singing, right? तो आप अनम्यूट करके you can sing। तो आपने HTML देखा होगा, you can keep on responding to me अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में। HTML देखा है आपने, उसमें टैग्स होते हैं कुछ HTML में, या XML, दोनों एक Yes, जैसे sir. होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो HTML और XML एक जैसे होते हैं दोनों, पर HTML वेब पेज बनाने के काम आता है, मतलब वेब पेज को डिजाइन करने के काम आता है। XML जो है वो डेटा को हैंडल करने के काम आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना ही डिफरेंस है कि डेटा को हैंडल करना है तो आप क्या यूज करेंगे, XML, वो डेटा कैरियर है। ओके, और HTML वो वेब पेज बनाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक पैटर्न होता है, देयर इज अ पैटर्न। ओके, आपको मैं अभी यहाँ नेट में दिखा भी देता हूँ, लेट मी शो यू। अगर यहाँ पे मैं कोई XML का एग्जांपल मैं खोलूं, XML, ओके, तो XML में आपको दिखाई देगा कि कुछ पैटर्न है, मतलब वो टैग बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो लेट मी शो यू द इमेजेस एंड दैट विल मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक सिंपल सा कोई खोलते हैं, जैसे ये वाला है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं नए टैब में खोल लेता हूँ, ओपन इन न्यू टैब एंड लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये XML के टैग्स हैं। तो ये जो है ब्रैकेट्स में अकाउंट्स लिखा है, और ये अकाउंट जहाँ पे एंड हुआ होगा वहां पे ब्रैकेट्स में स्लैश अकाउंट लिखा होगा। तो यहाँ मुझे कहीं एंड होता हुआ दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। फिर ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी शुरू हुई
फिर प्रॉपर्टी नेम आया यहाँ पे, फिर प्रॉपर्टी स्ट्रिंग आया, और फिर ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया यहाँ पे, तो स्लैश प्रॉपर्टी लिखा है। फिर से जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नेम शुरू हुआ, ओके, एंड फिर वो चल रहा है, उसके बाद में ये प्रॉपर्टी फिर से खत्म हो गया। तो ये जो है एक फॉर्मेट जो है, ओके, यहाँ पे भी जो है ये माइनस माइनस दिख रहा है, तो शायद इन्होंने कंप्लीट जो है इमेज दिखाया नहीं है, नहीं तो जो स्टार्ट होता है वो वैसे ही एंड होता है। यहाँ पे देखते हैं एक बार, हाँ अभी इसमें देखिए, जैसे ये क्विज स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये क्विज लास्ट में एंड भी हुआ है। ये यहाँ पे कांडा करके समथिंग, क्वांडा समथिंग स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ पे एंड भी हुआ है, ओके। उसके बाद में आप देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ है, आंसर स्टार्ट हुआ है तो आंसर भी एंड हुआ है, करेक्ट। तो एक पैटर्न है, तो अगर आपको डेटा में कोई पैटर्न दिखाई दे तो आप उसको क्या बोलेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। चलिए, आपने कभी लॉग फाइल्स देखे हैं? हैव यू सीन लॉग फाइल्स? कोई भी लॉग्स देखे आपने? यस नो? Yes, sir. ओके ओके, कुछ लोगों ने नहीं भी देखे हैं, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको लॉग्स दिखाता हूँ, तो लॉग्स भी जो होंगे ना, चलिए कोई लॉग है यहाँ पे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देखिए इस लॉग को, लेट इट ओपन। हाँ, ये भी खुल रहा है। तो लॉग क्या होते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ और मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, जैसे ही क्रैश हो गई तो बहुत बार एरर मैसेज आता है, और मैसेज में कुछ लाइंस लिखे होते हैं, और नीचे लिखा होता है कि सेंड दिस एरर मैसेज टू द डेवलपर, ओके, या फिर कंपनी। तो वो क्या होता है, वो लॉग मैसेज होता है, एरर लॉग मैसेज होता है। अब देखो यहाँ पे एक ये लॉग कुछ दिख रहा है, ओके, क्या लॉग है पता नहीं, इसको देखते हैं अभी। लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दिस लॉग इन दिस पर्टिकुलर नोटपैड फाइल। आई थिंक बहुत सारा डेटा है, तो ये नोटपैड को भी लोड करने में टाइम लग रहा है, सो लेट इट लोड, उसको लोड करने देते हैं। हाँ ये देखो, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी एनलार्ज दिस, आई एम ट्राइंग टू, ओके, कोई बात नहीं, वो बड़ा होने में शायद टाइम लग जाएगा और भी। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो इसको मैं, लेट मी कॉपी दिस, ओके, यहाँ पे ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, ओके, कंट्रोल ए, ओके, सो इट्स कंज्यूमिंग टाइम, शायद नोटपैड के लिए हैवी हो रहा है, कोई बात नहीं। इसमें आप अगर देखोगे कि पहली जो लाइन है वहां लिखा है TS, फिर दूसरी जो लाइन है, ओके ओके, लेट्स वेट, थोड़ा आराम से करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो कर्ली ब्रैकेट से वो शुरू होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट पे एंड भी होगा, फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा, कर्ली ब्रैकेट पे एंड भी होगा, ओके। तो वो कर्ली ब्रैकेट यानी कि वो स्टार्ट ऑफ द लॉग है, लॉग में एक एंट्री जो करते हैं उसका स्टार्ट क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट, और वो खत्म कहाँ पे हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन भी वैसे ही, और हर लाइन पे जैसे मैंने TS पढ़ा था, पहला जो एक वर्ड था डबल कोट्स में वो क्या था, TS था, तो हर एक लाइन में वैसे ही TS करके ही होगा, ओके। लेट्स सी, ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, इसको थोड़ी देर हम वेट करते हैं, लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो वैरायटी पे हम वापस आएंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड को डिस्कस करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया, द डेटा विच इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके, रोज एंड कॉलम्स जो होता है उसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड अभी हम फिर से देखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, ये सारे के सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट्स हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो पार्ट आया, नाइस, हाँ अब देखिए यहाँ पे आ गया, ओके। और अब देखिए यहाँ पे जो है ये शुरू कैसे हो रहा है, इतने सारे लॉग्स हैं इसलिए इसको टाइम लग रहा था, सो मेनी लॉग्स आर देयर, ओके। और यहाँ व्यू पे जाता हूँ मैं, वर्ड रैप को हटा देता हूँ, ओके। अब देखो कैसे शुरू हो रहा है, हर एक लाइन जो है इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रही है, तो यानी कि फॉर्मेट पैटर्न, देखो पैटर्न क्या है, स्टार्ट ऑफ द लॉग इज विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट, देन TS है, हमेशा TS है, देखो यहाँ पे भी TS है, यहाँ पे भी TS है, यहाँ पे भी TS है, एवरीवेयर इट इज TS। TS मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाइम स्टैम्प, मतलब किस टाइम पर ये लॉग जनरेट हुआ वो लिखा हुआ है। तो टाइम स्टैम्प क्या है, यहाँ कोलन के बाद दिया है टाइम स्टैम्प, देखो 2021 को हुआ, 9:30 को हुआ, ओके, सॉरी 9 एंड दिस इज 30, तो ये जो है 9 मंथ हो गया, और ये 30 क्या है, आई हैव टू चेक ये 30 क्या चीज है, ओके। फिर ये जो है 11:58 को जनरेट हुआ है, 11:58 लिखा है ये, ओके, 11:58 को जनरेट हुआ, और ये कुछ सेकंड वगैरह है इस तरीके से। फिर दूसरा क्या है, PID, प्रोसेस ID इसका मतलब होगा, और ये प्रोसेस का नंबर दे दिया। फिर TID, आई डोंट नो व्हाट इज, किस चीज का लॉग है मुझे पता नहीं, ओके, हमने रैंडमली ओपन कर लिया है, बट TID कुछ ID है, और ये वो ID है। फिर SCV, ओके, SCV होगा सेवेरिटी, मतलब लॉग की सेवेरिटी कितनी है, केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए है, या वार्निंग के लिए है, या एरर के लिए है, सेवेरिटी क्या है। फिर उसके बाद आप देखोगे रिक्वेस्ट, ओके,
तो यानी कि इसमें हर एक लाइन पे सिमिलर डेटा मिल रहा है हमें, है ना, सिमिलर डेटा मिल रहा है। देखो ये टीएस मतलब ये एक कॉलम बना सकते हैं हम टेबल में, और उसमें ये वैल्यू डाल सकते हैं, उसी कॉलम में दूसरी रो में ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ इस डेटा को, आई कैन कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ टेबल फॉर्मेट। तो यानी कि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में, थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर सिंपली आप देखोगे तो ऐसा जो डेटा होता है उसको आराम से, ओके, लेट मी शो यू दैट। ओके, थोड़ा हम यहाँ पे मैंने जुपिटर नोट नहीं, यहाँ पे मैंने कोलैब खोल के भी रखा है। कोलैब पे कभी काम किया आप लोगों ने? हैव यू एवर वर्कड ऑन कोलैब? ओके फाइन। No, sir. No, sir. तो आप यहाँ पे देखिए collab.research.google.com। ओके, तो ऐसा आप टाइप करेंगे। तो अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है आपके लैपटॉप में, इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल पाइथन वगैरह, तो सीधा आप ये खोलो collab.research. मैंने यहाँ पे लिंक भी भेज दिया है google.com। तो ये आपको पाइथन का प्रोग्राम करने का पूरा एनवायरनमेंट दे देगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया आपको, और ये बहुत अच्छा दे देगा आपको। अच्छा कैसे दे देगा? आप यहाँ पे देखो, मैं एक नया बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो, फाइल में गया मैं, और यहाँ पे न्यू नोटबुक में चला गया। तो एक नोटबुक, मतलब इस नोटबुक में मैं पाइथन के कोड्स लिख सकता हूँ। तो मैंने एक ये नोटबुक यहाँ पे ओपन कर लिया, और अब देखो ये नोटबुक अभी ओपन हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। ये हमको पूरा एक सीपीयू दे देगा पीछे बैकग्राउंड में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे अभी मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, अब ये अलोकेट कर रहा है एक सीपीयू, ये मेरे को अलोकेट करके दे देगा। देखो कनेक्टिंग, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और ये आपको दिखाएगा कि कितना रैम और कितना स्टोरेज ये हमको दे रहा है, ओके। और उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज जो नहीं भी है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखो कनेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, देखो रैम और डिस्क इसने दे दिया। रैम कितना है? रैम जो है 12 GB रैम है, 12.69, मतलब 13 GB तक रैम दिया है। और 107.72 मतलब 110 के करीब इसने हमको स्टोरेज दिया है, क्योंकि इसने पीछे एक ओएस बनाया होगा, ओएस में ही कुछ 2-3 GB चला जाता है। तो इसने 110 के करीब तक कुछ हमें रैम दे दिया, सॉरी हार्ड डिस्क दे दिया। और इसने हमें जो यस है, यू कैन सी 13 GB तक डिस्क दे दिया। क्या करूंगा, इस फाइल को, ये लॉग फाइल, ये कहाँ पर था एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, मैंने लॉग जब टाइप किया था, तो ये आप देखोगे ये इधर है, ओके, लोकेशन। तो मैं ओपन फाइल लोकेशन कर लेता हूँ, इस डेटा को मैं लोड कर लूंगा। हाँ देखो ये लॉग किसका, अच्छा ये टैबलू के लॉग्स हैं, देखो ये टैबलू के लॉग्स हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो ये साइड में एक फोल्डर का सिंबल है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और इस पे क्लिक करके यहाँ पे ये अपलोड का सिंबल है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और अपलोड में जाके ये टैबलू वाला पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसी पाथ को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि मैं वहां से वो लॉग उठा लूँ। तो कहाँ गया? ये रहा लॉग। तो वो लॉग मैंने उठा लिया। ये बोल रहा है कि जब आप रीस्टार्ट करोगे तो लॉग डिलीट हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये कोई परमानेंट एनवायरनमेंट तो है नहीं। जब तक आपको काम करना है आप काम करो इसमें, उसके बाद बंद कर दो, इस तरीके से है। तो आप देखो ये लॉग फाइल यहाँ पे लोड हो रही है, ओके। तो इस लॉग फाइल को, अब ये लॉग फाइल जो है, अभी आपको इस फॉर्मेट के बारे में जानकारी नहीं है कि ये फॉर्मेट क्या है। तो ये फॉर्मेट जो मुझे दिख रहा है, ये एक जेसन फॉर्मेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जेसन टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है, ओके। तो जब मैं इसे लोड करूंगा, तो लोड करने के टाइम पर मैं वहां मेंशन करूंगा, जैसे फाइल का नाम तो txt है, पर फाइल का फॉर्मेट मुझे जेसन टाइप का दिख रहा है, क्योंकि जेसन टाइप में क्या होता है कि ऐसे पहले की होती है, फिर वैल्यू होती है, फिर कॉमा, फिर दूसरी की होती है, फिर वैल्यू होती है, फिर कॉमा, फिर तीसरी की होती है, फिर वैल्यू होती है। इसको हम की वैल्यू फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये डेटा मुझे जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। या फिर पाइथन में एक डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप होता है, वो भी ऐसा ही होता है। तो ये मुझे मालूम है पहले से। आपको नहीं मालूम तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता कि भाई ये किस फॉर्मेट का डेटा है, पहले पता लगाना होता, ठीक है। तो ये जो है कुछ समय में लोड हो जाएगी। जब तक वो लोड हो रही है, मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट का स्टेटमेंट, इंपोर्ट कमांड लिखूंगा, इंपोर्ट pandas pandas as pd, मैं ऐसे एक इंपोर्ट का कमांड लिखूंगा, ठीक है। अब ये जो पांडास है मेरे पास में, पांडास, ये पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी तो आपको समझ में आती है, लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे आप लाइब्रेरी में गए और आपको कुछ बुक्स पढ़नी थी, तो आपने क्या किया?
आपने बेसिकली लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करा लिए और वो बुक्स आप पढ़ने लगे, है ना। तो उसका पर्पस क्या हुआ? उसका पर्पस ये हुआ कि आपको जब तक पढ़नी है तब तक पढ़ो और वापस कर दो। उस तरीके से पाइथन में भी आपको कोई फंक्शन चाहिए तो मुझे पांडास का फंक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि पांडास जो है वो जेसन को रीड कर सकता है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ इम्पोर्ट, मतलब पांडास को इम्पोर्ट करो, लेके आओ। ओके, और मैंने क्या बोला, पांडास थोड़ा लंबा नाम है, उसको थोड़ा शॉर्ट नेम दे देते हैं, एस पी डी, उसको पीडी। जैसे अभी अथर्व है तो अथर्व को घर में हो सकता है कि अगर आप छोटे होंगे तो आपको कुछ निकनेम बुलाते होंगे, है ना। मे बी आपकी अम्मी आपको बोलती होंगी, जस्ट बोलती होंगी बाड़ा इकड़े, ओके, मतलब एक निकनेम दिया होगा। या छोटू नाम होता है, या फिर कुछ और भी नाम होता है, अथर्व का अद्दू बोलते होंगे, एनीथिंग, राइट। अजय का अज्जू बोलते होंगे। तो इस तरीके से पांडास को हम पीडी बोलेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, उसको एक छोटा सा नाम दे दिया, पांडास एस पीडी। तो अब मुझे जब भी पांडास को बुलाना है तो मैं किस नाम से बुलाऊंगा? मैं पीडी के नाम से बुलाऊंगा। पांडास इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे पास में नाम इतने बड़े हो जाते हैं कि हर बार आप वो टाइप करते करते आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि बेटा शॉर्ट नेम, एक छोटा सा नाम दे दो उसको। ओके, अब मुझे ये फाइल जो है, अब मुझे देखना है ये फाइल मैं लोड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो कॉपी पाथ लिखा हुआ है, मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। और ये लॉग डेटा है, एक वेरिएबल बनाऊंगा लॉग नाम का, और आगे इज इक्वल टू लिख दूंगा, और पीडी डॉट, ओके। मैंने क्या होता है, मुझे लग रहा है ये जेसन डेटा है, तो मैं यहाँ पे रीड एक फंक्शन होता है, रीड लिखूंगा, ये मुझे ऑप्शन देता है। तो जेसन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जेसन ऑप्शन भी है, रीड जेसन, वो मैंने किया, ब्रैकेट डाला, और यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से लोड करवाने की कोशिश की। ओके, तो अब ये जो है, हाँ, ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है ट्रेलिंग डेटा, तो कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ट्रेलिंग डेटा, तो लास्ट में इस फाइल के एंड में, ओके, एंड ऑफ दिस फाइल देयर माइट बी समथिंग, ओके। क्योंकि लॉग फाइल्स कैसे होते हैं, लॉग फाइल्स में डेटा कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, तो कभी कभी एंड में डेटा जो है पूरा आ गया। तो यहाँ पे देखूं तो आई कैन सी दैट डेटा तो हमारा पास है, आई बिलीव सो, ओके। बट ये जो है इस तरीके से लोड नहीं कर पा रहा। तो इफ यू आर नॉट एबल टू लोड दिस वे, देन व्हाट टू डू, तो क्या करना चाहिए? ओके, तो पहले इसको मैं एज ए सीएसवी ले लेता हूँ। कैसे लूंगा? एज ए सीएसवी ले लूंगा। सीएसवी मतलब कि इसमें कॉमा है, तो कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, इसको मैं एज ए सीएसवी ले लेता हूँ। देखो, लॉग इज इक्वल टू पीडी डॉट रेड, ओके। रीड में वहां पे एक सीएसवी भी था, देखो यहाँ पे एक सीएसवी भी था, कहाँ गया? ये रहा सीएसवी, सीएसवी हो गया। और यहाँ पे मैंने फिर से फाइल का नाम डाल दिया, इसको मैंने एज ए सीएसवी लोड करवा दिया। अब ये बोल रहा है एरर, ओके। तो अब इसमें प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है इस फाइल में, ओके। अब इसको मैं समझाने जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें ये बोल रहा है कि कहीं कहीं पर तो आपके कुछ ही कॉमास हैं, 4-5 कॉमा है, कहीं कहीं पे आपके पास 10 कॉमा है, ओके। तो ये कॉमा हर लाइन में सेम नहीं है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस वाले फाइल को हम यहीं पे पार्क करते हैं, पार्क यानी कि यहीं पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पे वापस से आएंगे, क्योंकि अभी आपको बेसिक से शुरू करना है। तो मैं यहीं पे आपको हैंडलिंग करना शुरू करवा दूंगा, तो मे बी इट माइट बिकम लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन। पर चैलेंज क्या है यहाँ पे, इस फाइल में कहीं कहीं पर जो है रिकॉर्ड्स कम है, कहीं कहीं पे रिकॉर्ड ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड यहीं पे खत्म हो गया, और कुछ रिकॉर्ड्स जो है देखो इतने सारे रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ तक रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, कुछ बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इस वजह से इसको डील करने का थोड़ा अलग हम तरीका देखेंगे, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं, ओके। तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैसा होता है, ऐसा होता है। चलो, पर आप हम यहाँ पे आए ही हैं तो कुछ तो करना चाहिए, है ना, कुछ तो डिस्कस करना चाहिए। तो लेट मी डिस्कस समथिंग विद यू। एंड मैं आपको एक डेटा जो कि CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का डेटा है वो दिखाता हूँ, ओके। वो वाला लॉग डेटा, जिससे कि आप एटलीस्ट ये समझें कि लॉग डेटा को लोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एक डेटा है जिसका नाम है आइरिस, ओके। तो इस आइरिस डेटा को देखो, ये आइरिस डॉट डेटा, तो इस आइरिस डेटा को मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। इसको पहले मैं आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली डेटा है क्या। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, ये एक डेटा है, ओके। इसमें क्या है देखो, 5.1, 3.5, 1.4, 0.2, आइरिस सेटोसा, इस तरीके से ये जो डेटा है यहाँ पे, राइट। अब ये है क्या, इसका भी आपको आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। आपने रोज फ्लावर्स तो देखे होंगे ना, गुलाब के फूल तो देखे होंगे। तो गुलाब के फूल कैसे होते हैं, कौन से कलर के होते हैं? व्हाट इज द कलर ऑफ रोज फ्लावर? क्या होता है? रेड, येलो, ब्लैक। ब्लैक भी होता है? मैंने ब्लैक वाला नहीं देखा बस।
ब्लैक होता है क्या? Yes, sir. ओह नाइस, ओके। तो रोजेस जो हैं उनके बहुत सारे जो है कलर्स होते हैं, मतलब रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। यानी कि स्पीसीज तो एक है, मतलब रोज तो रोज है, पर उसके स्पीसीज के टाइप्स बहुत सारे हो गए, है ना? तो ये तो अब सबको कॉमन अवेयरनेस है। उसी तरीके से हमारे पास में एक और फ्लावर है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। ओके, तो आइरिस एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है। ओके, इसको मैं दिखाता हूँ कैसा फूल होता है। एक ब्लू कलर का बहुत ब्यूटीफुल, देखो ये दिस इज, ये आंखों वाला आइरिस नहीं, ये फ्लावर वाला आइरिस देखो। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड दिस फ्लावर इज आल्सो हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। इसके भी अलग अलग स्पीसीज होते हैं। ओके, वो कैसे समझ में आते हैं? वो हम देखते हैं कि जो इसके सेपल्स हैं, वो सेपल्स का लेंथ कितना है, सेपल्स का विड्थ कितना है, फिर जो नीचे के पेटल्स हैं, ये जो पत्तियों जैसे पेटल्स हैं, वो पेटल्स का लेंथ कितना है, पेटल्स का विड्थ कितना है। तो हम ये चेक करते हैं कि पेटल्स और सेपल्स जो है इनके लेंथ और विड्थ कितने हैं, और उसके बेसिस पर हमें समझ में आता है कि ये स्पीसीज कौन सा है। क्योंकि आपने देखा होगा रोज के फ्लावर्स में भी हर एक रोज का फ्लावर का जो साइज होता है वो सेम नहीं होता। कुछ बहुत बड़े रोज के फ्लावर्स होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा राइट? कलर भी चेंज होता है और शेप एंड साइज भी चेंज होता है, पर उनको देखने से समझ में आता है कि रोजेस हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट जो एक एसेंस है, एक जो स्ट्रक्चर है, वो वैसे ही रहता है। उस तरह से ये जो फ्लावर्स हैं इनके भी अलग अलग जो है स्पीसीज होते हैं। ठीक है, अब इनके स्पीसीज के हिसाब से हमारे पास में 3 तरह के स्पीसीज का डेटा हमने इकट्ठा किया। एक हमने आइरिस का सेटोसा वाला स्पीसीज लिया, तो हमने कुछ 40-50 रिकॉर्ड आइरिस सेटोसा वाले के लिए। ओके, फिर उसके बाद में हमने आइरिस वर्सिकलर, एक स्पीसीज का नाम है वर्सिकलर, उसका लिया, उसके भी 40-50 रिकॉर्ड लिए। उसके बाद में हमने डेटा कलेक्ट किया वर्जिनिका, एक और स्पीसीज है उसका नाम है वर्जिनिका। ओके, और इन सभी के तीनों के हमने सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये डेटा कैप्चर किया। ओके, तो ये डेटा हमने सभी का कैप्चर किया। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या? इससे हमारे पास में डेटा मिल गया कि कौन सा फ्लावर का सेपल लेंथ इतना होता है, पेटल लेंथ इतना होता है, फिर सेपल विड्थ इतना होता है, पेटल विड्थ इतना होता है, तब वो सेटोसा होता है। तो आप देखोगे कि सेटोसा में ये 5.1 है, 4.9 है, 4.6 है, 5.0 है, 5.4 भी है। तो यानी कि सेटोसा में क्या हो रहा है, 4.5 से लेकर के 5.5 तक रेंज जा रही है किसकी? सबसे पहले वाले सेपल लेंथ है, ये सेपल लेंथ। और यही चीज मैं नीचे आके दिखाता हूँ, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5.9, 6.2, 6.5, मतलब सेटोसा से बड़े हैं इसके सेपल्स, करेक्ट? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. राइट, हाँ। तो ये हमने डेटा कैप्चर किया। तो लाइन नंबर 14, यस यस यस। तो जब डेटा कैप्चर कर रहे थे, हाँ श्रेयस, तो जब डेटा कैप्चर कर रहे थे तो बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी हमें सारा डेटा मिलता नहीं है ना, या फिर कैप्चर नहीं हुआ ठीक से। तो यहाँ पर बस हमें केवल सेपल लेंथ मिला, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ नहीं मिला, तो वो हमने छोड़ दिया उसको ऐसे ही। तो फ्लावर कौन सा था? फ्लावर तो आइरिस सेटोसा का था, पर हमें उसका सारा डेटा नहीं मिला। और यहाँ पे 2 फ्लावर्स और थे, पर उनका डेटा हम कैप्चर नहीं कर पाए। ओके, तो वो बस हमने उनकी एंट्री रखी, पर उनका डेटा नहीं मिला हमें। ओके, तो ये इस तरह के जो है, ये आप देखोगे इनको बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज। क्या बोलते हैं? मिसिंग वैल्यूज। ओके, तो ये मिस हो गया हमसे। बहुत बार सर्वे भी करते हैं, तो सर्वे करने में भी क्या होता है, सारा डेटा कभी कभी नहीं मिलता ना। बहुत लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहते, तो वो उनको बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज। तो जहां जहां पे आप देखोगे डेटा नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? मिसिंग वैल्यूज। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि ये वाला डेटा डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको हैंडल करना, तो इस वजह से व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी लोडिंग दैट आइरिस वाला डेटा। तो आइरिस वाला मैं लोड करता हूँ, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए मुझे अगेन डी ड्राइव में जाना होगा, और यहाँ पे ट्रेनिंग में जाकर के आई विल हैव टू सर्च फॉर इट, और मैं यहीं पे टाइप कर देता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यस, आइरिस डॉट डेटा। तो इससे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। ओपन करने के बाद में देखो ये डेटा लोड हो रहा है यहाँ पे, और इस डेटा को मैं लोड करके यहाँ डिस्प्ले कराता हूँ, जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस आए कि कैसे डेटा लोड होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3 डॉट्स पे एंड कॉपी पाथ किया, एंड हियर आई एम टाइपिंग IRIS आइरिस, ये वेरिएबल नेम हो गया, इज इक्वल टू pd डॉट, ये तो CSV फाइल है तो इसलिए रीड, और यहाँ पे CSV करेंगे हम। तो ये सजेशन दे रहा है, ये सजेशन दिया इसने, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया पाथ, और ये एग्जीक्यूट कर दिया, और आइरिस को मैंने ऐसे डिस्प्ले करने की कोशिश की, और आप देखेंगे ये डेटा डिस्प्ले हो गया। इसमें एक चीज है, देखो ये पहली रो जो है वो कॉलम का नाम बन गई, वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉमा, वो हेडर होता है,
तो हेडर को मैं क्या करूंगा, इसमें हेडर है ही नहीं तो मैं हेडर को नन कर दूंगा, देयर इज नो हेडर। ओके, तो आई एम टेलिंग देयर इज नो हेडर। तो अब यहाँ पे नो हेडर है, तो अब आप देखोगे वो हेडर अपने आप से 0 1 2 3 4 ले लेगा। यू कैन सी दैट हेडर इज नाउ 0 1 2 3 4। ओके, हेडर इस तरह का हो गया और हमारे पास में सारे रिकॉर्ड्स आ गए। कितने रिकॉर्ड्स आ गए? 152 रोज आ गए और 5 कॉलम्स आ गए। ओके okay, if somebody is in the waiting room, so ma'am you can allow them, the students are saying. Okay, so 152 रिकॉर्ड्स मेरे पास में आ गए। इस तरह से डेटा लोड हो जाता है इसमें। ओके, तो बस इतना ही मुझे अभी दिखाना था। ये भी सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, पर इस डेटा में भी एक फॉर्मेट है। आप देखोगे जहां जहां पर वैल्यूज नहीं थे उसने NA मतलब नॉट अवेलेबल या नॉट अ नंबर ऐसे करके उसने वहां पे लिख दिया। ओके, तो इसको भी हैंडल कर सकते हैं इजीली, हम इसे भी हैंडल कर सकते हैं। Fine, that option is there with us. Okay, fine. तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, let's move ahead। और आगे बढ़ते हुए let's go to the presentation back again। So yes, here is the presentation। तो variety, और variety के बाद में velocity है। velocity का हमने पहले भी डिस्कस किया। velocity मतलब क्या हुआ? the speed at which data is growing। तो speed ही इतनी हाई है, speed ही इतनी ज्यादा है कि स्पीड के हिसाब से भी डेटा को मैनेज करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। काफी मुश्किल हो जाता है कि मतलब डेटा आ रहा है उसे हम स्टोर करें कहीं पर, फिर उसको यहाँ से प्रोसेस भी करते रहें। तो ये स्टोर और प्रोसेस का जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो डेटा बहुत सारा वेटिंग में आ जाता है। कभी हम जाते हैं किसी शॉप में भी जाते हैं और वहां देखते हैं कि आज बहुत रश है, खासकर फेस्टिव सीजन्स में क्या होता है, फेस्टिव सीजन्स में बहुत बार रश बढ़ जाता है, तो हम लाइन में खड़े रहते हैं एंड समटाइम्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, यार तुम्हारे पास आदमी नहीं है कि मैनेज करने के लिए, राइट? दिस इज व्हाट वी से। So Derek, can you please unmute yourself? Yeah, Derek D'Souza, please unmute yourself. Yes. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ऐसा रश बढ़ जाता है तो उसी तरीके से डेटा में भी रश बढ़ जाता है। कैसे रश बढ़ जाता है कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, आपका स्टोरेज लिमिटेड है, प्रोसेसिंग भी लिमिटेड है। जब प्रोसेस करोगे yeah, Derek, I request you to please mute yourself. Derek, if you are listening, can you please mute yourself? Okay. Thank you, yeah. So yes, so we were discussing कि डेटा इतना सारा आ जाता है कि हमारा जो स्टोरेज है वो भी लिमिटेड है। अनलिमिटेड स्टोरेज तो हो नहीं सकता, एक लिमिट ही होगी स्टोरेज की, राइट? सो जो लिमिटेड स्टोरेज है, अभी आपने देखा कि जैसे ही फेसबुक आप देखोगे, फेसबुक में क्या हुआ, फेसबुक और व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम सर्वर्स दे वर डाउन फॉर सम टाइम। तो क्या हुआ, एवरीबडी वाज रशिंग टुवर्ड्स टेलीग्राम, एवरीबडी वाज रशिंग टुवर्ड्स ट्विटर, और वो भी लैग करने लग गए, वो भी स्लो हो गए। क्यों स्लो हो गए? अगेन यही रीजन है, वेलोसिटी। ओके, अचानक मतलब कि नन ऑफ आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रेडी टू बेयर इमीडिएट लोड। ऐसा इमीडिएट लोड आएगा तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी रेडी नहीं है कि उसका लोड को बेयर कर सके, करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, कि इतना फास्ट डेटा प्रोड्यूस हो जाता है कि उसको स्टोर करके रखना, उसको प्रोसेस करना टाइमली, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे बढ़ते हैं। वेरासिटी, वेरासिटी क्या होता है? अब देखो, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे करीब 150 मतलब 150 लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो 150 लोग, केवल 150 है यहाँ पे, इन्हीं 150 के बारे में। ओके, तो नाउ लेट मी हैव समबडी। तो लेट्स से सारा। ओके सारा, आई एम गिविंग यू वन टास्क। आपको एक काम दिया कि आपको एक 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर बनाना है, और आपको इन सभी लोगों से, यहाँ पे जो 150 लोग हैं, इन सभी का एक आंसर जो है कलेक्ट करना है, ठीक है? So Sarah, tell me, how much time do you require? Okay, she's not here, I think. Fine. So let me give it to Mahesh. Okay. So Mahesh, the same task I'm giving it to you. कि आपको जो है 10 questions का questionnaire बनाना है, और वो आपको शेयर करना है यहाँ पे जो 150 लोग हैं इनके साथ में। So how much time do you think you will be able to get the responses from all these 150 people? ये 150 लोगों से आप response ले पाएंगे? कितना टाइम लगेगा आपको? Chalo, now I'm making it open to everyone. Okay, anyone can basically respond to this question. कैसे करेंगे आप, और कितना टाइम लगेगा आपको? Sir, I will provide them a Google form where they can submit their answers. Right. Yes, sir. So that can be a very easy and quick way, and I do agree. Okay, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अपना पार्ट तो हम कर लेंगे। यस आदित्य, 15 मिनट 17 मिनट 20 मिनट अपना क्वेश्चनर जितनी देर लगा बनाने में, और भेजने में भी दिक्कत नहीं है।
सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, ईमेल्स होंगे, तुरंत भेज दिया, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि लोग भर के कितने टाइम पे देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी सारा वाज फेसिंग अ टेक्निकल ग्लिच, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, शी वाज डिस्कनेक्टेड आई थिंक एंड देन शी गॉट कनेक्टेड बैक, सो देयर आर ग्लिचेस आल्सो। तो बाय व्हेन आर यू गोइंग टू गेट ऑल द responses? No idea. It doesn't depend on you. Only the thing which depends on you is कि आप कितनी देर में क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो फॉर्म बना करके वो फॉर्म भेज रहे हैं, इतना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बाकी कुछ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, करेक्ट? तो इस वजह से चैलेंज क्या है कि इफ आई वांट कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मेरे को सारे रिस्पॉन्सेस चाहिए, मेरे को एनालिसिस करना है, विल यू बी एबल टू गिव दैट? इट मे बिकम वेरी चैलेंजिंग। ओके, इट मे बिकम वेरी चैलेंजिंग एंड ऑल द टाइम्स, चलो बाई चांस अभी हो गया, पर हर समय क्या ऐसा हो सकता है? नो, इट मे बिकम चैलेंजिंग ऑल द टाइम्स। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, इसको हम कहते हैं कि काम तो करना है पर काम करने के लिए टाइम कम है, रिसोर्सेज कम है। तो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? इस टाइम पे हो सकता है कि अब बोलेंगे यार सारा का भी तू भर दे, अदिति का भी तू भर दे, महेश का भी तू भर दे, और ये 10 लोगों का भी तू भर दे। मतलब क्या किया हमने? एक बंदे को बोला तू 10 का भर, तू भी 10 का भर, तू भी 10 का भर, हमको 150 दिखाने हैं तो दिखाने हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? एम्बिग्युइटी। क्या वो 10 लोगों ने रियल में रिस्पांस दिया? नहीं दिया। बहुत बार आप देखोगे ये सर्वे होता है ना, गवर्नमेंट के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, मतलब हर घर में कितने कितने लोग हैं काउंट करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बुजुर्ग से कोई बैठे हैं घर में, सब लोग काम करने गए हैं, उनको पूछ रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि कौन है ये लोग, क्या है ये लोग। ओके, उन्होंने कुछ तो बोल दिया, अब इन्होंने अजम्पशन से लिख दिया हाँ भाई 2 लोग हैं, बेटा होगा बहू होगी, ऐसा करके लिख दिया बस, और मे बी एक चाइल्ड होगा। क्या ये सही डेटा था? नहीं, उनको डेटा देना ही था तो उन्होंने कुछ भी भर दिया। दूसरा, या तो उन्होंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया। तो दोनों ही केसेस में कि अगर वहां पर उन्होंने कुछ गलत लिख दिया या फिर उन्होंने वहां पर कुछ मिसिंग रख दिया, दोनों ही केसेस में इज द डिग्री टू विच बिग डेटा कैन बी ट्रस्टेड। बिग डेटा को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेरासिटी। इसको वेरासिटी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज वेरासिटी। देन कम्स द वैल्यू पार्ट। ओके, तो वैल्यू क्या होता है? जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं। मोर द डेटा मोर द वैल्यू यू कैन जनरेट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से मान लेते हैं आपको ही जो है धरती से मतलब अर्थ से एक एंगल डिसाइड करना है कि भाई ये मेरा अर्थ है और यहाँ से एक एंगल डिसाइड करना है। तो आप पूरा जी जान लगा देंगे कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट प्रेसाइज एंगल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पॉइंट मतलब 0.0000 समथिंग भी डिफरेंस हुआ ना, आप चांद में तो नहीं जाएंगे, यू लैंड अप समवेयर एल्स। ओके, और यू मे नेवर लैंड अप। सो यू वुड लाइक कि इतना प्रेसाइज डेटा हो, इतना प्रेसाइज डेटा हो कि जो एंड वैल्यू है, एंड रिजल्ट है, वो क्या मिलना चाहिए? वो एंड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू रीच लैंड ऑन मून इटसेल्फ। आपको मून पे ही लैंड करना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए आपको, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। ऐसा यहाँ पे होता है। क्या होता है यहाँ पे कि the precise data you have, the more precise data you have, you can get more business value. उससे आपको बहुत ज़्यादा business value मिलती है। Okay, then variability, एक variability का टर्म है यहाँ पे। variability क्या होता है? The ways in which big data can be used. Okay, अब इतना सारा डेटा है, इसको कैसे यूज कर सकते हो आप? यू कैन यूज दिस डेटा, आप यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ईआरपी है, ईआरपी मतलब जिसमें सारे एम्प्लॉइज, सारे एचआर, सारे डिपार्टमेंट्स, सब डेटा एक जगह स्टोर होता है। एचआर वालों के लिए यूज करो, मतलब एचआर एनालिटिक्स। कैसे? कि कितना एट्रिशन हो रहा है, कितने एम्प्लॉइज आते हैं, कितने जाते हैं, कितने रुकते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना खराब परफॉर्म करते हैं, हम कैसे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाते हैं। वही डेटा आपका किसके लिए काम कर रहा है? एचआर डिपार्टमेंट के लिए। अब सेम डेटा को आप लेके आओ, कहाँ पे लेके आओ? सेल्स के लिए लेके आओ। सेल्स के लिए कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, क्या टारगेट्स दिए जाते हैं, क्या टारगेट अचीव करते हैं, गिव इट टू देम आल्सो, उनको भी दो। ओके, तो वही डेटा आपका उनके लिए भी काम कर रहा है। तो वेरिएबिलिटी मतलब डेटा आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो है उसका एक सबसेट, या उसको आपने कुछ फॉर्मेट कर दिया, वो आपके एचआर के लिए भी काम कर रहा है, वो आपके सेल्स के लिए भी काम कर रहा है, वो आपके एडमिन के लिए भी काम कर रहा है, वो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है, सभी के लिए वो काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबिलिटी, इसे बोलते हैं वेरिएबिलिटी। तो दीज आर 6 V's ऑफ डेटा। इनकी वजह से डेटा को हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा। इनकी वजह से डेटा इज कॉल्ड एज बिग डेटा। बहुत बड़ा डेटा हो गया। फाइन, आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? सभी क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर द क्वेश्चंस, देन वी विल मूव अहेड। हम आगे बढ़ेंगे। यस, एनी क्वेश्चंस डू वी हैव टिल दिस पॉइंट?
आर वी ऑल गुड? सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है जितना हमने अभी तक डिस्कस किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, आर वी गुड विद द स्पीड ऑल्सो? मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ. ओके, आर वी गुड विद द स्पीड ऑल्सो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. अब जो है हम डेटा साइंस की तरफ आएंगे. ओके, धीरे से. पर उससे पहले मैंने बताया था डेटाबेस वगैरह को मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होते हैं. तो लेट्स मूव. डेटाबेसेस. डेटाबेसेस क्या होते हैं? वो टेबल्स के फॉर्म में, मतलब टैबुलर फॉर्मेट, रोज होंगे और कॉलम्स होंगे. ओके, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है. इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो इस तरह के डेटाबेसेस होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास. जैसे हम अलमीरा में कुछ बुक्स वगैरह स्टोर करते हैं, या कपड़े स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए. तो स्टोरेज सिस्टम्स अलग अलग हैं, आप सब यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं. ओके, पर उसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत बार नहीं होती हमें, बिकॉज हर चीज की नॉलेज होना हर टाइम पे जरूरी नहीं है. ओके, जब टाइम आता है तभी हम उस चीज को सीखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. बिकॉज वी ऑल आर इन टेक्निकल, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल. हमें ये समझ में आना चाहिए. तो जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं, अभी आप कौन सा यूज करते हैं? आप सभी मोबाइल तो यूज करते हैं. मोबाइल में आप कोई भी फोटो फाइल वगैरह सेव भी करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. ओके, तो वहां पे एक फाइल मैनेजर का एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है. वो एप्लीकेशन में आप जाओगे तो क्या दिखता है वहां पे? उस एप्लीकेशन में दिखते हैं सारे फाइल्स वगैरह दिखते हैं. तो वो क्या है? दैट्स अ फाइल सिस्टम. ओके, अभी भी अगर मैं दिखाऊं तो मेरे मोबाइल में, ओके, आई बिलीव आप मेरा मोबाइल देख पा रहे होंगे. ओके, मेरे Yes, मोबाइल sir. में भी यहाँ पे एक ये फाइल सिस्टम है, देखो. ओके, ये जो फाइल सिस्टम है, और यहाँ पे मैंने ये फोल्डर वाला ओपन कर लिया, फोल्डर वाला. तो देखो ये फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो मोबाइल में भी आप देखोगे तो फाइल सिस्टम होता है. फाइल सिस्टम क्या है? एक स्टोरेज का तरीका है. इट्स अ वे ऑफ स्टोरेज ओनली, है ना? उस तरीके से लैपटॉप में अभी हम देख रहे थे, मैंने सी डी ड्राइव में गया, वहां से मैंने फाइल उठाई, ये भी एक स्टोरेज का तरीका है. मतलब फाइल सिस्टम. गूगल ड्राइव भी है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट देता है, वो भी है. तो ये सारे के सारे क्या है? ये फाइल सिस्टम्स हैं, ये सारे फाइल सिस्टम्स हैं. अब देखो, मेरा मोबाइल जो है, एंड देन जो मेरा लैपटॉप है, मेरा सीपीयू है, ये जो फाइल सिस्टम है ये स्टैंड अलोन है, मतलब ये यहीं पे रहते हैं, मेरा डेटा यहीं पे रहेगा. पर गूगल ड्राइव कैसा है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे? हमको दिखता नहीं है, पर बैकएंड में कैसा है? क्या आपको मालूम है कि आपने गूगल ड्राइव में एक फाइल स्टोर की, तो फाइल कहाँ पे गई? कहाँ गई वो फाइल? किसी सर्वर पे गई, किसी सीपीयू पे गई. कहाँ पे? वो सीपीयू क्लाउड में है. किसका क्लाउड है? गूगल का. वन ड्राइव में स्टोर किया, वो कहाँ गई? वो भी एक सीपीयू में गई. किसका सीपीयू है? माइक्रोसॉफ्ट का, मतलब क्लाउड पे गई. ओके, क्या एक ही सीपीयू है उनके पास? नो, thousands and thousands of CPUs are there. तो आपकी फाइल उन thousands में से कहाँ पे है? आपकी फाइल क्या एक ही सीपीयू में है? नो, आपकी फाइल एक से ज्यादा सीपीयू में है. क्यों? क्योंकि अगर वो एक सीपीयू खराब हो गया तो क्या करेंगे? वो कहाँ से लाएंगे आपका डेटा? समझ में आ रहा है, राइट? क्या होता है? हम स्टोर करने के लिए तो स्टोर कर देते हैं, पर एट द बैक एंड गूगल कैसे प्रोसेस करता है? पूरा उस डेटा का कॉपी बनाता है. 3 कॉपी बनाएगा वो. एक कॉपी एक सीपीयू में, दूसरा कॉपी दूसरे सीपीयू में, तीसरा कॉपी तीसरा सीपीयू में. तो आपका फाइल कितने जगह गया? 3 सीपीयूज में गया. ओके, तो अगर एक सीपीयू काम नहीं कर रहा है या वो बिजी है, तो गूगल आपको इमीडिएटली दूसरे सीपीयू से फाइल दे देगा. अगर आपका फाइल बहुत बड़ा है तो गूगल क्या करेगा? तो गूगल आपके फाइल को डिवाइड कर देगा, कट कर देगा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में. और आपका वो स्मॉल स्मॉल पार्ट, मतलब मान लेते हैं फाइल का 1 2 3 3 पार्ट्स बन गया, तो पहला पार्ट एक सीपीयू, दूसरा पार्ट दूसरा सीपीयू, तीसरा पार्ट तीसरा सीपीयू, अलग अलग सीपीयू में चले जाएंगे. ओके, और इन तीनों पार्ट्स के भी 3 3 रेप्लिका बन जाएंगे. कितना कितना मतलब ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर पीछे बना रखा है कि आप अपना डेटा कभी लूज नहीं कर सकते, हमेशा सेव रहेगा. तो स्टोरेज के अलग अलग मैकेनिज्म है. ओके, तो ये जो फाइल सिस्टम वाले हैं ये मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करते हैं. आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस, ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. स्ट्रक्चर मतलब टेबल, सिंपल टेबल मतलब स्ट्रक्चर. एसक्यूएल और डेटाबेस उसको मैनेज करते हैं. एसक्यूएल लैंग्वेज होगी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ये उसको मैनेज करते हैं. किसको? स्ट्रक्चर्ड डेटा को. पर स्ट्रक्चर्ड के अलावा बाकी दूसरे टाइप ऑफ डेटा है, उसको कौन मैनेज करेगा? उसके लिए अलग सिस्टम्स हैं. हम प्रोग्राम लिखेंगे, पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तब जाके मैनेज होगा वो. जैसे अभी सेमी स्ट्रक्चर था, तो मैं क्या कर रहा था? मैंने पाइथन में इंपोर्ट पांडास लिखा, फिर मैंने इंपोर्ट किया उस फाइल को, फिर देखा वो फाइल आ गई, वहां पे उसका डेटा आ गया. तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसके लिए खासकर हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज कर लेते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज कर लेते हैं. ओके, उसके थ्रू हम उसको मैनेज कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखो, ये होता है. अब नीचे आईडी, नेम, नंबर, ऐसा लिखा हुआ है. ओके,
तो क्या है ये बेसिकली ये एग्जाम्पल है डेटाबेस का। इस तरह से डेटाबेस जो है टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, टेबल्स के फॉर्मेट में। दिस इज एन टर्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे, डेटा साइंस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम एआई के ऊपर आएंगे, फिर प्रोग्राम भी देखेंगे। देखो OLTP और OLAP ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी से आप बिल्कुल इसको क्लियरली समझ लो और इसको जो है आप क्लैरिटी रखिए, क्योंकि राइट इट डाउन। आप अपना डिप्लोमा खत्म करेंगे, मान लेते हैं इंजीनियरिंग भी करेंगे और 2-3 साल एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो आपको कम से कम अगले आने वाले 10 साल तक तो ये OLAP और OLTP पता ही होना चाहिए। ओके, तो ये OLAP OLTP होता क्या है? वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, सिंपल से हैं, ओके, याद रखने के लिए भी आसान है, OLAP और OLTP। ओके, सिंपल सिंपल से हैं। तो OLTP मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। लेट मी टेल यू, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। अब गूगल पे सब लोग यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे क्यों यूज करते हैं? या पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करना है, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का वो इतना 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 बड़ा है, उसके बावजूद भी वो लोग इनोवेशन ला ही नहीं सके। वो बैंकिंग को आम आदमी को के लिए आसान बना ही नहीं सके। वो पता नहीं सिक्योरिटी पे ही अच्छी बात है, सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, पर उन्होंने उसे आसान बनाया ही नहीं। क्योंकि उन्होंने आसान नहीं बनाया, इसलिए फोन पे आया, इसलिए पेटीएम आया, इसलिए गूगल पे आया। आप समझ रहे हैं क्यों आया? अगर बैंकिंग खुद ही ये सारे सिस्टम ले आती तो इनकी जरूरत क्या थी? इनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इतना बड़ा प्रोसेस सेटअप करना। आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर, गूगल डायरेक्टली थोड़ी ना पैसे ट्रांसफर कर देता है, बीच में 3-4 बॉडीज हैं, उसको यहाँ से अप्रूवल लेना, वहां से अप्रूवल लेना, वहां से अप्रूवल लेना, फिर जाके पैसे ट्रांसफर होते तो तुरंत है, पर वो सारे प्रोसेस के अप्रूवल्स लगते हैं। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, मतलब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव मेड अ ट्रांजैक्शन टू यू, कैन यू प्लीज कंफर्म कि आपको यू हैव रिसीव्ड 2000 रुपीज। करते हैं ना हम लोग, है ना? किसी को ट्रांसफर कर दिए तो पूछते हैं, बोलते हैं नो नो आई डिडंट रिसीव। अब उसको अगर नहीं मिला तो क्या हो गया? बोलेगा नो देयर इज नो ट्रांजैक्शन। ओके, अगर आपने भेजे और उसको नहीं मिला, वो क्या बोलेगा? देयर इज नो ट्रांजैक्शन। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको मिले ही नहीं। तो अंडरस्टैंड, ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने भेजा और उसको मिला, ठीक है? यू सेंट एंड दैट पर्सन रिसीव्ड। ट्रांजैक्शन ये नहीं कि आपने भेजा और वो अटक गया और इसको मिला ही नहीं, मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ट्रांजैक्शन क्या होता है डेटाबेस में? क्योंकि बैंकिंग कर क्या रही है? आपने पैसा भेजा, कोई कैश थोड़ी चला गया। डेटाबेस में एक वैल्यू गई ना, आपके डेटाबेस में नेगेटिव वैल्यू गई कि भाई -2000, और उसके डेटाबेस में +2000 गई। करेक्ट? यही तो ट्रांजैक्शन है। बाकी वो जब एटीएम में जाएगा तो वो +2000 के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। तो ट्रांजैक्शन जो होता है वो डेटाबेस के अंदर होता है, मतलब एक एंट्री होती है ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने पैसे भेजे तो उसको मिलने चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आजकल हम लोग खाना भी बहुत ऑर्डर करते हैं, है ना? जोमेटो हो गया या तो बहुत सारे हैं। तो जब खाना ऑर्डर कर रहे हैं उस टाइम पर मैंने यहाँ से ऑर्डर किया और वो सेलर बोलता है सर मेरे को ऑर्डर आया ही नहीं, मेरे को तो आया ही नहीं, तो भी गलत बात है ये तो। ओके, तो भी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर उसको मिलना भी चाहिए, रिसीव होना चाहिए, क्योंकि उसको जब तक रिसीव नहीं होगा सेलर को तब तक वो आपको बना के भेजेगा नहीं, है ना? रेस्टोरेंट वाले को मिलेगा नहीं, सो ही विल नॉट बी एबल टू सेंड यू बैक। ओके, कि वो प्रिपेयर नहीं करेगा उस तरीके से। थर्ड चीज, आपने जो है अमेजोन में कोई प्रोडक्ट बुक कर दिया और वो अमेजोन बोले मेरे को तो मिला ही नहीं। ओके, तो आई बिलीव इतने एग्जांपल काफी हैं। आपने टिकट बुक की तो टिकट बुक होती है ना, आपका पैसा कटा तो टिकट भी मिलती है आपको, सीट भी मिलती है आपको, राइट? तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ, आई वाज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। सो ये कोविड टेस्ट, सॉरी कोविड का RT-PCR टेस्ट, ये सब में बहुत टाइम लग गया एंड आई मिस्ड माय फ्लाइट। ओके, आई वाज वेरी, मैं अपने दुख को बेसिकली शेयर कर रहा था, भाई मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरे को रीशेड्यूल कर दो या कुछ रिफंड करोगे क्या? उसी बीच में अ लेडी केम एंड सेड कि अरे मेरा सब कंफर्म था और आप लोग अभी लास्ट मोमेंट में बोल रहे हैं कि देयर इज एक्स्ट्रा बुकिंग एंड यू कांट फ्लाई। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, आई विल नॉट नेम द कंपनी आल्सो हियर। तो वो कंपनी जो है उन्होंने बुक कर दी फ्लाइट की टिकट और कंफर्म भी कर दी, और लास्ट में आप बोल रहे हैं, कोई मेल कुछ नहीं दिया कि फ्लाइट ओवर बुक्ड हो गई थी और ओवर बुक्ड होने की वजह से यू कैन नॉट फ्लाई टुडे, वी विल अरेंज अ होटल और समथिंग फॉर यू, यू फ्लाई टुमारो। एंड दैट लेडी वाज शाउटिंग एंड क्रिएटिंग हैवक देयर। ओके, शी वाज आल्सो राइट एट हर पॉइंट कि भाई आई एम अलोन हियर एंड हाउ कैन यू आस्क मी, एंड शी वाज सेइंग यू डू एनीथिंग, को कुछ भी करो, किसी मेल पैसेंजर को बोलो, बट आई विल नॉट लिसन। नाउ अंडरस्टैंड क्या हुआ यहाँ पे। ओके, तो ट्रांजैक्शन, उस लेडी ने ट्रांजैक्शन किया, मतलब पेमेंट किया, उसको बुकिंग भी मिला, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ। तो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ एंड हुआ दैट वाज ट्रू,
पर इनका जो अपना प्रोसेस था उस प्रोसेस में कुछ तो ग्लिच मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन, ओके, एंड दे शुड इंटीमेट अर्ली। इनके प्रोसेस में कुछ ग्लिच है, उस ग्लिच को इन्होंने इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, द लेडी शुड गेट द फ्लाइट एंड शी शुड फ्लाई, ओके, क्योंकि उसने पेमेंट भी किया, उसको कंफर्मेशन भी मिला है। ओवर बुकिंग का बाद में नहीं बोल सकते। तो दिस इज अ ग्लिच, इनके प्रोसेस में ग्लिच है, डेटाबेस में ग्लिच नहीं होता। तो ट्रांजैक्शंस आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। आर वी ऑल क्लियर विद द ट्रांजैक्शन? यस, नो? Yes, sir. Yes. ओके ओके, ग्रेट, फाइन। अब हम समझते हैं OLAP को, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, है ना, मान लेते हैं फ्लाइट के ट्रांजैक्शंस हैं, हर रोज होते हैं, ओके, मैंने फिर वहां पे तुरंत जो है मेरा 4 o'clock का था, फिर मैं वहां पे निकलते निकलते 5 बज गए, फिर मैंने अपना 7:30 पौने 8 का एक फ्लाइट मुंबई का एक अवेलेबल था, वो बुक किया। मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांजैक्शन, चलो वो तो सब चला गया, एक और मैंने फ्लाइट बुक किया, वो बुक किया। वो बुक करने के बाद में फिर I was able to come to Mumbai, फिर वहां से I came back to Pune, okay। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो ट्रांजैक्शंस है मैंने किया, मेरे जैसे बहुत सारे पैसेंजर्स ने किया, है ना, आज भी कर रहे हैं, आज भी लोग बुकिंग कर रहे हैं, कुछ घूमने के लिए कर रहे होंगे, ऑफिस वर्क के लिए कर रहे होंगे। सो ट्रांजैक्शंस आर रियल टाइम, हर रियल टाइम, हर रोज होती रहती हैं। अभी भी इस टाइम पर भी कोई जोमेटो पे बैठा होगा और खाने ऑर्डर कर रहा होगा, अभी भी कोई अमेजोन पे बैठा होगा और कोई कोई बुक्स, कोई प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर ही रहा होगा, है ना। तो दीज आर ऑल ट्रांजैक्शंस, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। There's a question, can someone else use our data? So आदित्य, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन शायद मैं उस टाइम पे चैट में देख नहीं पाया, तो यू कैन मे बी अनम्यूट एंड आस्क कि आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब किस डेटा की आप बात कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट, ओके। आर यू सेइंग नाउ? अभी बोल रहे हैं तो आई विल लिसन टू यू, या फिर आप चैट में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके डाल दो, आई विल आंसर। हाँ बोलिए। Clouds, you said. अच्छा, क्लाउड से, ओके, I'll answer that. OLAP के बाद में मैं I will answer your question. Yeah. तो ये जो OLAP है, ये क्या है कि हर टाइम पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, ओके, अभी भी चल रहे हैं, इस टाइम पे भी चल रहे हैं ट्रांजैक्शंस। आपको भी पता है, हो सकता है आप फैमिली में बैठे होंगे और आपका भाई जो है वो बोलो यार आज पिज्जा मंगाते हैं, ओके, बोलो नहीं मुझे एक नया टॉय चाहिए, छोटा भाई होगा, मेरे को टॉय चाहिए तो चाहिए, मेरे को अमेजोन से ये वाला टॉय ला के दो, तो वो भी ट्रांजैक्शन है, बुक कर दो, पैसा पे कर दो, ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। तो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। जब ये ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं, फिर हम बैठ के एक दिन देखते हैं, यार इस महीने कितना मैंने खर्चा किया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सारे पूरे मंथ के ट्रांजैक्शंस को देख रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया OLAP। OLAP में क्या होता है, पूरे हिस्ट्री में, मतलब पास्ट में जितने ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं उसका एनालिसिस करना, इसको बोलते हैं OLAP, ओके। तो ट्रांजैक्शन रियल टाइम होते हैं और एनालिटिकल प्रोसेसिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस का जो डेटा पास्ट में, 1 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, 50 साल का, आप देखोगे मतलब 50 इयर्स पुरानी कंपनी है, उनके पास कितना डेटा होगा, बहुत सारा डेटा है उनके पास में। तो इस सब डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज बेसिकली एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एनालाइज करना। तो पास्ट डेटा को एनालाइज करना, उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसेसिंग बोलते हैं, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि OLTP मतलब रियल टाइम ट्रांजैक्शन, और जब ये ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, महीने भर के, हफ्ते भर के या साल भर के, तो इनके ऊपर एनालिटिकल क्वेरीज चलाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मेरा बैंकिंग एप्लीकेशन है, ओके। अब ये जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो क्या करता है, ओके, दिस बैंकिंग एप्लीकेशन ये मेरे को जो है ऐसा सजेशन देता है। अभी यहाँ पे एक सेक्शन है, वो पर्सनल है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ओके। तो ये जो है ये मेरे को ऑप्शन देता है, और ये ऑप्शन क्या देता है मेरे को, ये ऑप्शन देता है मुझे कि सजेशन देता है, इस महीने इस तारीख को यू आर गोइंग टू मेक दिस मच। यस अभिषेक, क्या मैं एक अलग फीचर्स भी इसमें है उसकी बता रहा हूँ, ओके, सिबिल स्कोर के साथ साथ में। तो आप इस महीने में इस तारीख को इतना खर्चा करने वाले हैं, इस तारीख को आपको इतना पेमेंट रिसीव होने वाला है, इस तारीख को फिर से आप इतना खर्च करने वाले हैं, इस तारीख को अगेन आपको इतना रिसीव होने वाला है, ओके। तो दैट मीन्स क्या क्या किया उन्होंने मेरे पूरे ट्रांजैक्शन छान लिए, मतलब पिछले महीने के, उससे पिछले महीने के, उससे पिछले महीने के, और एक पैटर्न मिला उन्हें कि यार ऑन एन एवरेज इसको इस तारीख को जो है मोटा मोटा इतना अमाउंट आता है, और इतना इतना खर्च तो ये करते ही करता है। जैसे लोन जा रहा है, वो बताएगा देखो इतना खर्च आपका होने वाला है,
इसको भी बोलते हैं एनालिसिस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. एंड अभिषेक, यस, सिबिल स्कोर आल्सो एनालाइज डेटा एंड गिव अस क्रेडिट स्कोर, करेक्ट. तो वो भी एनालाइज करते हैं, पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं. आपकी प्रोफाइल की रेटिंग मिलती है, आपको स्कोर मिलता है कि भाई मे बी आपको लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड लेना है, या फिर वो सारी जो लिमिट्स होती हैं वो सब इस पे तय होता है कि कितना आपका इनकम है, कितना आउटफ्लो है, कितना सेविंग्स है, इन सब पे वो डिसाइड होता है. तो ये किस पे कर रहे हैं? ये पास्ट डेटा पे कर रहे हैं, जो डेटा पहले से ही है हमारे पास उस पे कर रहे हैं. दिस इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड एंड कम टुवर्ड्स डेटा साइंस. ओके, तो अब हमने डेटा के बारे में बहुत अच्छा जान लिया, काफी ज्यादा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है. और अब डेटा साइंस की बात करें तो नाउ क्विकली लेट मी आस्क यू, और तब तक मैं आंसर दूंगा. मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर टाइप करें. ओके, तब तक मैं आंसर दूंगा आदित्य का. तो व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहते हैं? डेटा हटा दो, साइंस. ओके, तो तब तक मैं आदित्य का आंसर दे रहा हूँ, आप चैट में लिख सकते हैं बाकी लोग. तो नाउ यहाँ पे आदित्य, क्लाउड में जो डेटा होता है पहले बहुत सिक्योर होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको हम बोलते हैं एथिक्स. ओके, अभी जैसे आप फ्रेशर्स हैं तो बहुत बार क्या होता है, फ्रेंडशिप्स है, मस्ती मजाक में कभी कभी फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने आपको कुछ अपना सीक्रेट बताया, तो आपने मस्ती मजाक में उसका सीक्रेट किसी और को ही बता दिया, फिर आपने उससे बात करके सुलह कर लिया और फिर फ्रेंड बन गए. तो ये सब ये बहुत ही मतलब फ्रेंडशिप और बचकानी चीजें हैं. पर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो हाँ, बड़े बड़े स्कैम्स भी होते हैं, वो एक अलग बात है, दैट इज रॉन्ग थिंग, दैट इज द डार्क साइड ऑफ दिस थिंग. पर एथिक्स पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, एथिक्स पे. ओके, तो अब फॉर एग्जांपल अब जितने भी सर्वर हमने लिए हैं जिस कंपनी से, तो वो कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा डेटा वो छान सकती हैं, सब कुछ देख सकती हैं, दे कैन डू एनीथिंग विद द डेटा. इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर देम, बट एथिक्स, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पॉलिसी, दे कांट टच आवर डेटा. वो एक्सेस नहीं कर सकते, वो टच नहीं कर सकते जब तक हम उनको अथॉरिटी ना दें कि यस यू कैन गो एंड यू कैन चेक आवर डेटा. जब तक हम ना बोलें तब तक वो नहीं कर सकते. दिस इज policy, this is the contract, this is ethics. Okay, so lot of things they run on ethics, so ethics पे काम करते हैं. ठीक है, तो the answer is कि ब्रीच होने को, लीक होने को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं. ओके, बट जो कंपनी खुद होती है वो बेसिकली आप उनके कस्टमर हैं, आप उनके कस्टमर बने रहें, इस वजह से वो क्या करती हैं, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी डेटा को सिक्योर रखती हैं. दिस इज व्हाट कंपनीज डज. ओके, now Shreyas का question है, why is there huge transaction speed difference between two databases? For example, if you compare online shooting video games and regular app. Yeah, Shreyas, can you explain, मतलब यहाँ पे डेटाबेस की आप बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन स्पीड जो डेटाबेस की बात कर रहे हैं. ओके, ऑनलाइन शूटिंग वीडियो गेम्स एंड रेगुलर ऐप, कैन यू एक्सप्लेन इट? Yeah, Shreyas, if you can explain it, because ये थोड़ा सा ambiguous लग रहा है मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही. मतलब आप किस स्पीड की बात कर रहे हैं? एक डेटाबेस एक अलग चीज हो गया है ना, और अगर आप बात कर रहे हैं कि कुछ बफरिंग हो रहा है, जैसे फेसबुक या यूट्यूब में वीडियो गेम्स को बफर ये लेट्स से शेयर करते हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट देम? व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट? यू मे राइट इन द चैट आल्सो. Yes, there is something in the chat. For example, in games, the speed to register action is in milliseconds. Okay. And you are comparing to what? Where do you feel कि slow हो रहा है? वो कहाँ पे? But in apps, it takes longer time with the same net. Okay, any regular app. Okay. तो हाँ, अब इसका कोई one reason नहीं होगा. I'll not tell you a single reason of it. I'll tell you the possible reasons. Okay, possible reasons मैं आपको बता देता हूँ. अब देखिए, जैसे गेम में रजिस्टर करना है. ओके, गेम में रजिस्टर करना एक मार्केटिंग एक्शन होता है एक्चुअली. एक बार आप रजिस्टर हो गए, आपका ईमेल आ गया, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बार बार वो गेम दिखाई देगा और आपको नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे. तो गेम वो एक मार्केटिंग तरीके का. ओके, व्हाट मेक्स अ ट्रांजैक्शन? ओके, I'll tell you everything. ओके, मैं तीनों को बताता हूँ आपको. अब देखिए, ट्रांजैक्शन डेटाबेस की अगर बात करें तो डेटाबेस अगर आपका इंटरनेट स्पीड सेम है तो भी इट डिपेंड्स ऑन देयर सर्वर. एक तो उनके सर्वर पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ये वाली चीजों को अक्सर फास्ट ही रखा जाता है, क्योंकि यूजर जो है उसका मूड कब बदल जाए वो पता नहीं, आजकल बहुत डायनेमिक होता है. तो यूजर का मूड बदल गया तो सारा काम वहीं पे रुक गया, है ना. तो इसलिए वो बहुत फास्ट होता है.
दूसरे एप्स बहुत बार क्या होता है, बैंकिंग ऐप से थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो आपको लॉगिन डायरेक्टली करवा रहे हैं, या मैंने आपको बताया था जब पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनको 2-3 जगह से जो है रिस्पांस मिलना होता है। ओके, उनको गवर्नमेंट बॉडी भी बीच में होती है, जब भी ये पेमेंट एप्लीकेशंस पेमेंट करवाते हैं उनको वहां का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बाद में बैंक का भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो आप देखो इतने सारे अप्रूवल लेने में कुछ टाइम लग जाता है। ओके, सम टाइम इट टेक्स। तो देखो ये क्या हो रहा है, बीच में बहुत सारी एपीआई जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं और सारा अप्रूवल मिलने के बाद में ही जो है आपका प्रोसेस हो रहा है, तो इट टेक्स टाइम। ओके, अब व्हाट मेक्स अ ट्रांजैक्शन फास्ट? वन पॉइंट, जो सर्वर है, ओके, जो सर्वर है वो सर्वर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो ट्रांजैक्शन फास्ट होती है। ओके, सर्वर स्पीड शुड बी गुड। ठीक है, द आंसर इज सर्वर स्पीड शुड बी गुड। ओके, ना चलो आगे बढ़ते हैं। होप दिस इज मेकिंग सेंस। जो आप गेम्स और उसकी बात कर रहे हो वहां पे क्या है, वहां पे बेसिकली देखना पड़ेगा कि कितने, so they need approval for registration also. Okay, if you're only talking about registration, then look at their server. उनका सर्वर कैसा है? Okay, look at their server. वो कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, उसकी स्पीड कैसी है? Okay, it also depends on the server. Fine. Yes, because स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? सर्वर पे डिपेंड करेगी, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं बैकएंड में डेटाबेस उस पे डिपेंड करेगी, फिर आपकी एपीआईज कैसे लिखी गई हैं, मतलब पाइथन में लिखी हैं, किस प्रोग्रामिंग में लिखी गई हैं, उस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। और अप्रूवल आप बोल रहे हो कि नो, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूवल तब लगेगा जब ऐसी कोई एप्लीकेशंस होंगी, बैंकिंग, ट्रेडिंग। ओके, यस, लगेगा अप्रूवल उस टाइम पे। पर जहाँ पे जस्ट कोई अकाउंट बनाना है, जनरल एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी रीजन ज्यादा नहीं है, ज्यादा मतलब इस तरीके क्रिटिकल नहीं है, तो वहां पे अप्रूवल्स वगैरह इतने नहीं लगते। ओके, फाइन, ठीक है। होप you got some answer. I'll not say 100% आपको satisfaction मिला हो, but you got some answer. That day due to new update of Facebook was down because the update went wrong. Okay, fine. Okay, ठीक है, thanks for informing that. So now let's come to data science. Okay, तो data science क्या होता है? अब देखो, data science जो है, मैंने science की definition पूछी थी, I didn't get responses, so let's have the responses now. What is science? Science क्या होती है? Yes, quickly. What is science? Science क्या होती है? Anybody can answer. Okay, so how do they tackle this type of errors or problems? Wow, yeah. So we can discuss this question because as per the agenda of the session, few things are left. Okay, so let me answer in few lines. Okay, so that it doesn't take much time. For this, you need to understand the whole deployment cycle. Okay, पूरी deployment cycle आपको पता होनी चाहिए. Okay, तो deployment cycle में हालांकि ऐसे जो challenges होते हैं बहुत rare होते हैं बड़ी companies के साथ में. आप deployment cycle में verbally बता रहा हूँ, otherwise I really want to show you diagrammatically so that आप अच्छे समझ पाएं. तो हमेशा एक production environment होता है और उससे पहले एक testing environment होता है. सारी चीजें टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट होती हैं, उसके बाद में ही वो पुश की जाती हैं प्रोडक्शन में. मिनिमम मैं बता रहा हूँ. ओके, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये मतलब फाइनल स्टेजेस हो गए. इससे पहले वो डेवलपर टेस्टर अपना काम करते जा रहे हैं, वो उनका अपना काम कर रहे हैं. जब उनकी तरफ से फाइनल डिप्लॉयमेंट आई, वो यहाँ पे आगे टेस्टिंग में, टेस्टिंग सर्वर पे सब चल गया, उसके बाद में उसे प्रोडक्शन में डालते हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं. फेसबुक की अगर बात करें तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं. ओके, और ये बहुत बार मिस्टेक से हो जाते हैं, या फिर नेग्लिजेंस से हो जाते हैं, या फिर डिफरेंस इन द प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट से हो जाते हैं. ओके, काफी रीजंस हो सकते हैं इसके. तो जब ये बेसिकली टेस्टिंग एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल हो गया, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो लाइव एनवायरनमेंट में भी सक्सेसफुल रहे, मैक्सिमम चांसेस. पर उसमें भी अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट थिंग इज रोल बैक करना. ओके, तो बैकअप्स बहुत रहते हैं, बैकअप का पूरा बैकअप एंड रिकवरी का पूरा मैकेनिज्म सेट होता है. कभी भी जब अपडेट कर रहे होते हैं तो बैकअप एंड रिकवरी हमेशा रेडी रहती है, तो इमीडिएटली रोल बैक किया जाता है. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? ओके, वी कैन से होगा, राइट, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग विद फेसबुक, आई कांट टेल क्या हुआ है. ओके, एंड दे हैव नॉट रिवील्ड इट एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो वी कैन जस्ट अज्यूम कि क्या हुआ होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है. तो क्या हुआ होगा कि बेसिकली जो बैकअप एंड रिकवरी है
ओके शायद अपडेट, अगर अपडेट वाली बात है तो अपडेट इतना बड़ा होगा कि वो बैकअप एंड रिकवरी करने को भी ओके इट माइट हैव बीन टेकिंग टाइम ओके, और उन्होंने बैकअप में डाला होगा तो भी मे बी सम डेटाबेस इश्यूज और सम अदर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इश्यूज माइट हैव कम, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेस्टिंग लगती है, डेटाबेस टेस्टिंग, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो यूनिट लेवल टेस्टिंग से लेकर के इंटीग्रेशन टेस्टिंग से लेकर के सिस्टम टेस्टिंग से लेकर के सो मेनी टेस्टिंग्स आर रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो वो क्या पता बैकअप उन्होंने रिकवर बैकअप डाला होगा, देन अगेन इट माइट नॉट हैव बीन वर्किंग प्रॉपर्ली ओके। तो बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और ऐसा होता है ओके। एक बार चेंजेस कर दिए ना तो कुछ मे बी सर्वर में कुछ उन्होंने और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा, अब उसको वापस से सॉफ्टवेयर के डाउनग्रेड करो और फिर बेसिकली जो है बैकअप को डालो। सो देयर कुड बी मेनी रीजंस ओके। जैसे कि अब जेडीके मैं अभी तक 8 यूज कर रहा था, पर अब पूरा सेटअप जो है वो जेडीके 9 पे चल रहा है ओके। अब PHP XYZ वर्जन यूज कर रहा था, अब PHP ABC चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, सो आई कांट टेल यू कि यही हुआ है बिकॉज वी डोंट नो ओके, बट देयर आर सो मेनी रीजंस व्हिच कैन हैपन। फॉर दिस यू मे आस्क सेपरेटली, आई कैन एक्सप्लेन मोर ऑन दिस पार्ट, मैं आपको और अच्छे से इस पार्ट में बता सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस के बारे में पूछ रहा था। नाउ क्विक रिस्पॉन्सेज ऑन साइंस, बिकॉज मेरे को आपको थोड़ा सा AI भी बताना है, फिर मेरे को डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, तो लेट्स सी आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई द होल टाइम। तो व्हाट इज साइंस, टेल मी ऑन दैट पार्ट क्विकली, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है, अपने स्कूल डेज से पढ़ा हुआ है। यस यस, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस? Yes, quick responses. Okay, 1 more minute. I can, not 1 minute, 20 more seconds. What is science? No chats. It's a simple question, right? What is science? Okay, so one response, it is application of knowledge. Okay, it is application of knowledge about world, study of the structure and behavior of physical and natural world. Okay, thank you. Yeah, so yes, thanks for giving these responses. Exactly. So science starts with if you are observing something, if you're observing a phenomena, सूरज कैसे उगता है, कैसे नीचे आता है, this is science. If you're observing कि एक plant कैसे grow कर रहा है, science. If you're observing यार वो कार चल रही है तो कैसे चल रही है वो कार, वो wheel घूम क्यों रहा है, वो रुक क्यों गया, science. Are you getting? So if you start observing something, if you start to experiment on something, if you start exploring something, researching, all this is science. ये सब कुछ science में आता है, ठीक है? So science is basically observing, experimenting, exploring, all this comes under science. ये सब कुछ science में आता है. Logic behind things, exactly. Finding out the logic behind things, why things are happening around us, all this comes under science. Now understand, agar, so data science is exactly Abhishek. So in data science, it is who data works and exploring data. Yes, that's true. तो अगर मेरे को physical objects पे काम करना है, that is called as physical science. उसे क्या कहते हैं, उसे physical science बोलेंगे या physics बोलेंगे. मेरे को chemicals पे काम करना है, that is chemical science. उसे chemistry बोलेंगे. Data science क्या हो गया, I'm working on data. That is data science. I'm exploring data, I'm capturing data, I'm migrating data, I'm applying some logic on the data. Data science. All these are examples of data science, right? ये सारे data science के examples हैं. Okay, तो data के ऊपर आप कुछ भी काम करेंगे उसे data science बोलेंगे. Let us come to a definition. यहाँ पे हम definition देख लेते हैं. So the definition says that data science is a multidisciplinary field that multidisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. So data science क्या है? Data science is a multidisciplinary field. मतलब कि एक particular discipline को follow नहीं करती है, ये multiple disciplines को follow करती है, multiple disciplines को. Okay, and these multiple, okay,
yes, yes, I agree. Yeah. So ये multiple disciplines को follow करती है. Okay, आप health care में चले जाओ, आप manufacturing आप है किसी ऑटोमोबाइल्स चले जाओ, या फिर आप सेल्स वगैरह में चले जाओ, किसी भी डोमेन की बात करो. ओके, तो इन ईच एंड एवरी डोमेन डेटा साइंस हैज गॉट अ रोल. एंड ये क्या यूज कर रही है? एल्गोरिथम्स यूज कर रही है, सिस्टम्स यूज कर रही है. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो हमने इस बारे में डिस्कस किया पहले जानबूझ के कि डेटा का डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हो सकता है. ओके, तो उस डेटा को यूज करके यूजफुल इंसाइट्स निकालना, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा साइंस. ओके, तो अब जो है हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और विल जंप टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, हम एआई को डिस्कस करते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ डेटा साइंस. ओके, डेटा साइंस या फिर डेटा माइनिंग अगर आप बात करें तो डेटा माइनिंग, ओके, वेयर वी हैव लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जिसका अगेन ऑब्जेक्टिव है कि पैच सीएसवी था, इजीली हो गया. एक जेसन था पर उसमें रिकॉर्ड्स की लेंथ कम ज्यादा थी, तो वहां पे दिक्कत आ रही थी. तो यही चैलेंज है, आपके सामने चैलेंज आया. ओके, उसको मैंने टैकल नहीं किया अभी टाइम की वजह से. ओके, तो चैलेंज तो आया आपके सामने कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी चैलेंजिंग है अगर वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है तो. ओके, नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जब हम ये जो लॉजिक्स हैं, इन लॉजिक्स को मशीन में इनबिल्ट करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर्स में ये प्रोग्राम्स डाल देते हैं और कंप्यूटर हमारा काम करना शुरू कर देता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज ह्यूमन हैज गॉट इंटेलिजेंस. एक्चुअली इंसानों के पास में इंटेलिजेंस है, उसी इंटेलिजेंस को हम किसी प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिख करके कंप्यूटर में डाल देंगे और वो कंप्यूटर हमारे लिए वो काम करेगा. क्या बोलेंगे इसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है. अब जॉन मैकार्थी, ओके, ही इज बेसिकली the one who coined this term, इन्होंने ये टर्म कॉइन की. ये कहते हैं the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Okay, this is what John McCarthy says कि artificial intelligence is science and engineering of making intelligent machines. अब intelligent कौन होता है? Humans होते हैं. Okay, तो imparting human intelligence to मशीन, ये मशीन है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस मशीन में इंपार्ट कर दी, ये भी इंटेलिजेंट बन गई, ये भी ह्यूमन जैसा काम कर रही है. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब एक चीज है, अब हर टाइम पर मूवीज की तरह पर आपका एक एआई का प्रोडक्ट ह्यूमन की तरह सब काम नहीं कर लेगा. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन में खासकर अप्लाई होती है. ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टिल नाउ. अभी आप देखोगे चाहे एलेक्सा है, या फिर अभी इंडियन एक आईआईटी प्रोफेसर ने जो है एक रोबोट बनाया, और एक सोफिया रोबोट थी. ओके, तो ये जो है ये सब एआई के एग्जांपल्स हैं जो ह्यूमन लाइक एग्जांपल्स हैं. पर इतना ही नहीं, आप अगर देखोगे हॉस्पिटल्स में एक आर्टिफिशियल आर्म जो काम कर रही है डॉक्टर के साथ में, वो डॉक्टर से ज्यादा प्रेसिजन के साथ में काम कर लेती है. डॉक्टर बस उसको ऑब्जर्व करते रहता है. तो बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि प्रेसाइज काम करना है तो आर्टिफिशियल एक जो है एक हैंड दे दो डॉक्टर को, वो काम कर लेगा साथ में. तो दिस दैट इज आल्सो इंटेलिजेंस. ओके, और ह्यूमन से बेटर वे में काम कर लेगा, गलती नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्पेसिफिक एरियाज में किया है. बहुत ही लेमैन्स टर्म में बोलेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ टर्मिनेटर लाइक फिगर. एक कोई टर्मिनेटर होगा ऐसा, मतलब आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और वो टेक्निकल नहीं है. मान लेते हैं यू बिलोंग टू अ फार्मर्स फैमिली एंड यू विल टॉक टू योर फादर. ओके, एंड ही इज नॉट मच अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी. उनको बोलेंगे पापा एक ऐसा मैं आपको मशीन देता हूँ, वो खेती करेगा, आपको खेती करने की जरूरत नहीं है. ही विल से अरे ऐसा कैसा? ओके, मतलब तो उन्होंने कुछ मूवी देखी हुई, अच्छा वैसा रोबोट जैसा आएगा क्या? तो इन लेमैन्स टर्म इट इज लाइक अ रोबोट ओनली. ओके, बट इफ यू गो फॉर सम रिसर्चर हु इज वर्किंग ऑन एआई, तो वो ऐसा होगा कि वो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट पे काम कर रहा होगा. अच्छा ये क्या है? ये कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है, तो उसके लिए बोलेगा अच्छा ये कैट है. ओके, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वी आर एबल टू लुक एट एनी कैट टुडे एंड आई विल बी एबल टू टेल कि ये कैट है. लुकिंग एट एनी डॉग टुडे आई विल बी एबल टू टेल कि ये डॉग है ना. मैं बता पाऊंगा अभी इस टाइम पर. क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने वो डे माइंड में कैप्चर कर रखा है. देखा, माइंड में कैप्चर किया, देखा और माइंड में कैप्चर किया. तो अभी मैं किसी भी नए पिक्चर को देखूंगा, आई विल बी एबल टू टेल कि ये डॉग है, ये कैट है, ये पैरट है. ओके, क्यों? क्योंकि my mind has that intelligence, that capability. Okay, तो हम AI की डेफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम पे जंप करेंगे. ओके, बिकॉज दैट आल्सो विल गिव यू यहाँ पे
can't do mistakes until unless it has mistakes in its programming. That's true. Humans can do mistakes sometime, but machines or robots can't do mistakes until unless. Yes, true. Yes, correct. So यहाँ पे AI is one approach where we are trying to make machines which can think like humans, which can act like human, which can think logically, which can act logically. So this is what we are trying to do in case of AI. Okay. So इससे ज़्यादा मैं theory और इसमें अभी नहीं लेके जाऊंगा आपको. Let's jump back to our Python. Okay. यहाँ वापस आते हैं. अब एक approach यहाँ पे approach. अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, we are able to discuss here. Okay. देखो सोच जो है मतलब these things should come from your mind. आपके दिमाग से ये चीज आनी चाहिए और आपके माइंड से ही फिर आप इसको ऐसे लिखना शुरू कर दो, कोडिंग करना शुरू कर दो. ओके. एंड जितना सिंपल तरीके से शुरू कर सकते हो उतना अच्छा है. दिस इज माय स्ट्रांग रिकमेंडेशन. जितना आसान तरीके से आप शुरू करोगे ना, क्योंकि क्या होता है, मुझे तो ये आता ही नहीं, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, आप ऐसे करोगे तो आप फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे. सो जो आता है उसी के साथ में शुरू कर दो. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, बस मेरे को प्रोग्राम बनाने आते हैं कुछ. ओके. तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को जो है जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही एक इंटरेक्टिव चैटबॉट बनाना है, एक चैटबॉट बनाना है. तो मैं कुछ ऐसे करूंगा कि चलो ठीक है, सबसे पहले चैटबॉट हाई बाय तो बोलना सीखना चाहिए. ओके. हाई और बाय. ठीक है. तो GREETINGS ग्रीटिंग्स. ओके. तो ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, एक लिस्ट बनाई मैंने, इसमें हाई हो सकता है ग्रीटिंग. ओके. फिर हे हो सकता है ग्रीटिंग, फिर हेलो हो सकता है ग्रीटिंग. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रीटिंग के होते हैं. फिर जो 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 बाय बोलने के टाइम पे, ओके, आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट एज, तो मैं उसको बाय करके ही सेव कर लेता हूँ. तो जब जाने के टाइम पे बोलते हैं उस टाइम पे बाय हो सकता है, बाय कुड बी वन. ओके. देन वी कैन हैव अदर एज लेट्स से गुड बाय. यस, गुड बाय. या फिर हो सकता है सी यू. ओके, सी यू ये हो सकता है. फिर इसके बाद में और हैव अ गुड डे. ओके. इस तरह के कुछ जो है जाने के टाइम पे हम बोलते हैं इस तरीके से. तो सबसे देखो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं अगर सोचूं कि यार चैटबॉट कैसे बोलेगा, कैसे काम करे, उतना क्यों सोचूं मैं. जो जो पहले बहुत सिंपल ग्रीटिंग्स करो ना, हाय बाय करो, उसके बाद में आगे का सोचना, आगे का बनाना. ओके. तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा कोई भी काम आपको करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप छोटी सी एक एल्गोरिथम बना लो, मतलब छोटा लिख लो क्या करना है आपको, देन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट. तो ये मेरा ग्रीटिंग्स हो गया और बाय हो गया, दो चीजें हो गई. ठीक है. अब मैं बोलूंगा चैटबॉट. ओके. तो मैं बोलूंगा MODE मोड. ओके. मोड अगर वो ऑन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑन. तो अगर वो ऑन है तो चैटबॉट व्हाइल MODE मोड इज इक्वल टू ऑन. जब तक वो ऑन है तब तक मेरे से बात करना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इनपुट. ओके. तो इसके अंदर सबसे पहले इनपुट कर देंगे इनपुट एंड यहाँ पे ले लेंगे कि आई एम रोबो. ओके. और आई एम चैट रोबो. वो बोलेगा आई एम चैट रोबो. ठीक है. तो ये चैट रोबो बोलेगा, बस ये इतना बता देगा. तो ये इनपुट भी नहीं, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ. ओके. प्रिंट प्रिंट आई एम चैट रोबो. और इसके बाद में ओके, इसके बाद में हम उससे इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे चैट रोबो एंड वी कैन से हाउ मे आई HELP हेल्प यू. इतना बोल दिया. ठीक है. हाउ मे आई हेल्प यू. अब इसके बाद में हम लोग कुछ डालेंगे, वो होगा इनपुट. तो I इज इक्वल टू इनपुट. ओके. तो जो भी इनपुट हम डालेंगे उसको हम इफ में डालेंगे. इफ. ओके. इफ I is equal to ये if I in. okay, sir, is it like Google Assistant? Yes, it is like that only, but Google Assistant is very big. Okay, we are just starting with that. So अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, if I in, अगर ये greetings में से हुआ, okay, GREETI, अगर ये greetings में से हुआ तो क्या करना है, तो प्रिंट करो print प्रिंट. यहाँ पे प्रिंट कर दो हाय. और उसके बाद में ELIF elif अगर. ओके. FIN BYE अगर वो बाय में से हुआ तो प्रिंट कर दो प्रिंट बाय टेक केयर. ओके. बाय टेक केयर ये प्रिंट कर दो. ठीक है. इतना हो गया. और इसको भी ओके, दिस ऑल्सो वी कैन टेक दिस लाइन. ओके. इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट हेयर, इसको हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि वो वाइल का हिस्सा नहीं है, वो जनरल चीज है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है. अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, वो बोल रहा है आई एम चैट
रोबो हाउ मे आई हेल्प यू। ओके, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हाय, मैंने उसको हाय बोला, उसने भी मुझे हाय बोला। ओके, फिर मैंने उसको बोला बाय, उसने मुझे बाय बोला। ओके, बाय, टेक केयर। पर ये प्रोग्राम कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा, तो मैंने उसको यहाँ से स्टॉप करवा दिया प्रोग्राम को। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर मैं बाय के बाद में स्टॉप करवाना है तो मोड इज इक्वल टू मुझे कुछ और करना पड़ेगा, वो FF ऑफ कर दिया। अब फिर से मैं रन करता हूँ इसको। अब ये फिर से बोल रहा है आई एम चैट रोबो हाउ मे आई हेल्प यू। मैंने उसको बोला हाय, वो भी मुझे हाय बोलेगा। देखो उसने मुझे हाय बोला होगा, देखो हाय बोला उसने। मैंने उसको बाय बोला और वो स्टॉप हो जाएगा। मैंने उससे बाय बोला और वो स्टॉप हो गया प्रोग्राम। ओके, तो देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने एक चैटबॉट बनाने की शुरुआत भी कर दी, और बनाने के टाइम पे मुझे मजा भी आ रहा है कि अरे ये मेरे से इंटरेक्ट कर भी रहा है। ओके, नाउ इफ आई नीड टू ऐड मोर क्वेश्चंस। ओके, मुझे और सवाल पूछने हैं इससे। ओके, तो अब जो है मैं दुनिया भर के सवाल सीखता नहीं डालूंगा, क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप डालूंगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप कैसे, कि जैसे मुझे उसका मूड जाना है, आई वांट टू गेट टू नो अबाउट हिज मूड। ओके, तो उसने जब हाय बोला तो मैं भी हाय बोलूंगा, और फिर मैं पूछूंगा हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ओके, हाय के बाद में मैंने बोला हाय हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ओके, अब मैं यहाँ पर और भी ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि LFIN, और यहाँ पे मैं एक मूड वाला भी ऐड कर दूंगा। मूड, वो कैसा मूड बोल रहा है। ओके, मूड इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं अभी के लिए कि यूजर जो है एक वर्ड में ही आंसर देगा, तो यहाँ पे मैंने एक हैप्पी बोल दिया, एक सैड बोल दिया, दो ही रखे मैंने फिलहाल के लिए। ओके, कितने भी रख सकते हो आप, तो मैंने मूड में दो रखे, तो यहाँ पे मैंने लिखा ओके यस, सो LFIN मूड, और यहाँ पे अब उसने जो भी बोला होगा, तो अगर वो मूड में से है तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ, इसके अंदर एक और इफ डाल दूंगा, इफ ओके आई इज इक्वल टू हैप्पी। ओके, अगर हैप्पी तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट प्लग इट so that I don't lose battery. Okay, yes. So अब यहाँ पे देखेंगे print, और यहाँ पे करूंगा that's great to hear. That's great to hear. Okay, I am happy too. Okay, तो ये basically मैंने print कराया। और अगर okay ELIF okay LF अगर I बंद करून is देतो काय? equal to okay, Pranav, you are unmuted. Okay, you can mute yourself. So if he says sad, अगर वो बोलता है sad, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I will print okay I'm sorry, yeah. तो यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा I am so sorry to know, can I tell you a joke? Okay, तो इसको कितना भी लंबा मुझे बढ़ाना है मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इतना मैंने अभी इसे अपडेट कर दिया। अब इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आई एम चैट रोबो हाउ मे आई हेल्प यू, हाय ओके हाय हाउ आर यू फीलिंग टुडे। मैं लिखा हैप्पी, और उसने मुझे बोला कि दैट्स ग्रेट टू हियर, आई एम हैप्पी टू। ओके, तो जितना भी आपको इसे लंबा करना है यू कैन बेसिकली do that. Okay, आपको इसको आगे बढ़ाना है, कैसे लिखना है, you can work upon it, but जैसे ही मैं बाय बोलूंगा ये स्टॉप कर देगा। टेक केयर। लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं यूज किया, एक सिंपल तरीके से मैंने ऊपर जो है 3 लिस्ट लिए, और उसके बेसिस पर केवल while और if else के थ्रू मैंने एक चैटबॉट बनाना शुरू कर दिया। ओके, अब आपको लाइब्रेरीज के थ्रू करना है, तो मैं बस एक डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल आई have some sample codes for chatbot. Okay, मैं आपको demonstrate कर देता हूँ, you can refer to that. तो यहाँ पे एक chatbot मेरे पास में है। Okay, और ये chatbot काम करता है किसी फाइल के बेसिस पर, it works on the basis of a file. Okay, तो इसको एक फाइल मैं दूंगा यहाँ पे, let me give it a file. यहाँ से अपलोड करेंगे फाइल को, और मैंने एक फाइल बनाई थी जिसको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ, chatbot response data. Okay, रिस्पॉन्स डेटा है, और अब जो है इस फाइल के डेटा के हिसाब से चैटबॉट काम करता है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा ओनली। ओके, तो हाय हेलो तो ये कर लेता है, तो हाय हेलो तो इससे कर लेते हैं। उसके बाद में यस माय नेम इज रोबो, आई विल आंसर योर क्वेरीज अबाउट चैटबॉट्स। एक्चुअली चैटबॉट्स के बारे में बनाया था, वो फाइल मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। इफ यू वांट टू एग्जिट टाइप बाय। ओके, तो इसको भी मैं पहले हाय बोलूंगा, हाय, तो ये रिस्पॉन्स देता है, देखो हाय देयर। ओके,
तो अगर मैं इसको कुछ भी बोलूं, हाउ आर यू, इसको समझ नहीं आएगा तो ये क्या बोलेगा, ये बेसिकली डिफॉल्ट आंसर देगा, आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड यू। ओके, अब मैं इसको किसी भी चीज के बारे में बोलूंगा, ओके हैप्पी सैड वगैरह से कुछ बोलूंगा, तो जो मैंने लिखा होगा, ओके अब वो फाइल में क्या है, इट विल आंसर ओनली दैट। ओके, वो डेटा के अंदर वो फाइल किस चीज की है, चैटबॉट रिस्पॉन्स डेटा। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वंस अगेन। ओके, तो ओके यू आर सैड, ओके यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ, लेट मी राइट आई एम sad sad। ओके, मैंने उसको लिखा आई एम सैड। तो ये बोल रहा है, आर यू सैड टुडे, डोंट वरी देयर इज अ बैड डे इन एवरीवन्स लाइफ बट बिलीव मी it's temporary, it is going to end soon and you would get fresh breathe। okay, तो इसने क्या किया, इसने मेरे सेंटेंस को रीड किया और इसमें कुछ लाइब्रेरीज यूज की गई हैं जिससे इसने कंपेयर किया कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके सिमिलर है, और उसी तरीके से इसने मेरे को वहां से रिस्पॉन्स दे दिया। फिर यहाँ पे क्या है, आई डोंट लाइक गोइंग एनीवेयर, व्हाई नॉट टू पिक अप। ओके, यू डोंट लाइक गोइंग एनीवेयर। चलो मैं इसके सिमिलर कुछ बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ I D O N T don't like G O I N G going A N Y N E W H E everywhere। तो ये मेरे को वो रिस्पॉन्स देगा, रियली यू डोंट लाइक गोइंग एनीवेयर, व्हाई नॉट टू पिक अप योर फोन एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अ थिएटर। ओके, आर यू गेटिंग क्या क्या हो रहा है, जो मेरे पास यहाँ पे डेटा है, तो जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैंने बना दिए हैं और उसके बेसिस पर ये आंसर दे रहा है। और अब मैं बाय बोल दूंगा इसको, बाय, एंड इट विल स्टॉप हियर। ये स्टॉप हो गया, और इसी के साथ let me say bye to you as well because it's 12 and we need to conclude। So thank you very much for listening patientfully the whole session and being interactive। It was a good discussion with you all। Thank you, ma'am, over to you। Yes, students, you have any query or questions, then you can put in the chat box or you unmute yourself. Yes, students. Ananya, do you have any query? No, ma'am. Other students from first year? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I'll share with madam। Okay, whatever codes are there I'll share with madam, she can share with you। Okay. Or Yes, yeah. sir. Continue. Continue, sir. Yeah, I'm just sharing the link here itself. Okay, so you can download immediately. So I'm sharing the link here in the comment box. You can download the chatbot notebook. Which languages do we need to learn to do programming of RoboChat? So I would, there are multiple languages. Okay, there are multiple languages. I would recommend you go with the Python. It is very easy. Okay, you go with Python. It's very easy। Can we do ourselves? Yes, bilkul you can do yourself। As I told you, I did not use any kind of complex programming। Okay, मैंने कुछ complex अभी तक किया नहीं है, आपके सामने ही मैंने छोटा सा कोड बनाया। So you start with simple codes। Okay, एकदम से ऐसा 10 मंजिले पे चढ़ने का काम मत करो, ठीक है? So start with simple codes and then you'll be able to slowly grow। Okay, are you getting my point? एकदम से आप ये मत सोचो कि मैं एक एलेक्सा बना दूंगा। ओके, अभी के अभी वैसा नहीं है। आप पहले सिंपल चैटबॉट बनाओ जो कि केवल एक टेक्स्ट चैटबॉट होगा, फिर आप उसमें जो है वॉइस लाइब्रेरीज इन्वॉल्व करो, फिर वॉइस से वो रिस्पॉन्ड करेगा, इनपुट लेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, फिर आप उसमें कुछ विकीपीडिया या और कोई गूगल की लाइब्रेरीज ऐड करो कि वो इन जेनरिक कोई गूगल से उठा करके भी आंसर दे सकता है। तो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू गो। ओके, तो मैंने कोड जो है वो आपको यहाँ पे शेयर किया। यू कैन सी चैट जो गूगल कोलैब का कोड है, यू कैन सी हियर। ओके, आई हैव शेयर्ड दैट इन द लिंक। Okay, so both the notebooks I've shared। Yes, hope you are able to get it। Okay, yeah, fine। So if we have no more queries, then we would be concluding it here। Thank you, sir, for your prestigious time and knowledge shared with us, with our students.
Yeah, thank you, ma'am, for the opportunity. Okay, okay. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you, Thank you, everyone. sir. Okay, students, thank you very much. So you have another session, another webinar. Students, Yes, ma'am. Yes, ma'am. you have another webinar. You have another webinar, so join it. Okay. Ma'am, but the link? Just check on your official group. No, ma'am, not yet. It does not. Yes, let me check. Okay, you ask your class teacher otherwise. Okay. Okay, Okay. ma'am. I will ask. Okay, okay. Thank you very much. Yes, thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Okay, bye. Take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, take care.